Hi guys, so just let's get started. The only thing I'll say is that in this particular doubt discussion session, definitely it's not the first one we are having, but definitely the first one I'm gonna record, right? So we can speak in whatever language you are comfortable with. Hindi and English both are fine to me. So yeah, that's it. Let's get started. So the first person who has a doubt can let me know. हेलो। हाँ विशाल. सर वो ये प्रॉब्लम ये बता देते उसकी एक्सप्लोजन वाली। अच्छा हाँ कूल. सो भाई एक बार लिंक भेजेगा इस पे, डाउट क्लियरिंग पे भेज देना. ओके। Okay, cool. So this is the problem, right? Now if someone doesn't knows about the problem, I'm not discussing the problem per se over here. I'll just be going through the solution. Let me know if at any time my voice is breaking or something. ठीक है. Okay, so इसमें क्या है कि हमारे पास एक array है, right? Let me share my iPad. So the question states that there's an array that is given to us, right? So let this be the array that's provided to us. Now at any time I can use one unit of whatever power I have or whatever I have, right? And I can decrease a particular element by one, right? Or what I can do is that this operation can be only performed at the end, right? And also in this special operation, what I'll do is that let's say I have a value of let's say 7, right? Then I'll use 7 units of power to make it 0, and this would be a blast operation. So if there's anything to the left of it or to the right of it which has a value 6 or less, right? So the value should be n minus 1, right? Then this will also get blasted. Now to the left of 6, if I have something like a 5 or a 4, anything that is less than 6, even that would get blasted, and so on and so forth, right? This point is clear? Vishal, this point is clear? यस सर। ओके कूल. सो अब देख अब करना क्या है. सो आई नो दिस ऑपरेशन इज डेफिनेटली बेनिफिशियल बिकॉज मैं एक ऑपरेशन करके सब कुछ फाड़ सकता हूँ आसपास का, ठीक है. तो व्हाट आई वांट टू नो इज दैट व्हाट इज द like what is the amount of power required if I let's say this is my entire array. So this is going from 0 to n minus 1, ठीक है. So what I want to know is that let's say I want to blast the point at the ith location, right? So what is the amount of power required by me to make this a valid array? So from 0 to I minus 1, how much power is required if I want to make this a valid array? Now what do I mean by valid array? Now let's say my a of I over here was 7, right? Then I want that the element just to the left of it should be 6 or lower. This should be 5 or lower, so on so forth, right? तो अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे 4 3 2 1 आ जाएगा, उसके सारे 0 होने चाहिए. नाउ इट्स पॉसिबल दैट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट कैन एक्चुअली बी 5 itself और 4 itself, राइट? इट शुड बी लेस देन 7. बट अगर ये 5 या 4 हो जाएगा तो ये एलिमेंट मेरा 3 फिर 3 होना चाहिए. 4 के हिसाब से एक छोटा एलिमेंट होना चाहिए था, राइट? तो इट शुड बी एट मैक्स 3. इतना पॉइंट क्लियर है? यस सर। कूल. तो मेरे को ये एरेज बनाने हैं, तो आई विल बी हैविंग अ एरे लोअर, लेफ्ट लोअर बोल लेते हैं इसको, ठीक है. एंड सिमिलरली मेरे पास एक राइट लोअर आ जाएगा. सो लेफ्ट लोअर जो होगा वो बता रहा होगा कि ith एलिमेंट को अगर मेरे को ब्लास्ट करना है, ठीक है, तो हाउ लाइक व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पावर आई रिक्वायर. सो एग्जाम्पल टू गिव ओवर हेयर इज लेट्स से मेरा ith एलिमेंट इधर 7 था ना, लेट्स से मेरा i माइनस 1 एलिमेंट 8 था इधर, ठीक है. फिर हो सकता है ये वाला एलिमेंट मेरा था लेट्स से दिस वाज 6. कूल. दिस वाज आल्सो 6 एंड दिस वाज लेट्स से 7. तो मुझे वैल्यूज चाहिए कि एक्चुअल में इफ़ आई एम गोना ब्लास्ट दिस एलिमेंट, तो इसके लिए 7 पावर लगेगी ऑब्वियसली, राइट? बट ओवर हेयर आई वांट कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 होनी चाहिए, ठीक है. तो 8 माइनस 6 2, तो 2 यूनिट से पहले इसको कम करूँगा. नाउ सिंस दिस इज बिंग 6, सो ये एलिमेंट मेरा 5 होना चाहिए था. तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1. एक एलिमेंट एक यूनिट ऑफ पावर पहले इधर लगाना पड़ेगा मेरे को, और इसकी वैल्यू मेरे पास एट मैक्स 4 होनी चाहिए थी, तो 2 पावर इधर भी लग जाएगी पहले ही, और इसकी वैल्यू 3 होनी चाहिए थी. तो 7 माइनस 3 इज 4, तो 4 यूनिट्स इधर भी लग जाएगा, राइट? तो 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो गया इधर 6 7 8. तो 8 यूनिट्स पहले तेरे को चाहिए इधर, ठीक है. 8 10 जितना भी आएगा वो तेरे को पहले चाहिए. अब ये चीज़ कैसे कंप्यूट करेंगे वो चल बाद में देखते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज कि तू एक लोअर कैलकुलेट कर लेगा
लोअर लेफ्ट बन जाएगा तेरे पास एरे वाला, ठीक है, और वैसे एक लोअर राइट बना लेगा तू, ठीक है। एट द एंड व्हाट आई विल से इज दैट अगर मेरे पास लोअर लेफ्ट और लोअर राइट है, तो लोअर लेफ्ट वुड मीन कि जो लेफ्ट साइड वाले सारे एलिमेंट्स में वो ब्लास्ट कर सकता हूँ मैं। यार विशाल माइक म्यूट कर ले, वो नॉइज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। ओके, सो लोअर लेफ्ट वुड मीन कि 0 से i-1 के सारे एलिमेंट्स मैंने मतलब उसको कस्टमाइज कर दिया। ये एक किस्म से आई मेड इट इन सच अ वे दैट दे कैन बी इजीली ब्लास्टेड। और जो लोअर राइट होगा मेरा, दैट वुड से कि i+1 से लेके n-1 तक सारे एलिमेंट्स कैन बी ब्लास्टेड नाउ, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज़ होंगी, लेट्स से लोअर राइट की वैल्यू मेरे पास आ गई, लोअर लेफ्ट की वैल्यू आ गई थी l, ठीक है, लोअर राइट की वैल्यू आ गई थी मेरे पास r, और इंडेक्स एट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट वाज इटसेल्फ हैविंग अ वैल्यू ऑफ a ऑफ i, ठीक है। तो इफ़ आई वांट टू ऑपरेट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट बाय अ ब्लास्ट, तो मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना रिक्वायर्ड है, दैट वुड बी l प्लस r प्लस a ऑफ i। दिस मेक सेंस? यस सर। कूल। अब बात आती है कि ये कंप्यूट कैसे करेंगे। ये जो हमने बात तो कर ली लोअर लेफ्ट या लोअर राइट, इसको कंप्यूट कैसे करेंगे। तो इधर एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है कि मान ले मेरे पास कोई भी एरे है ऐसे, ठीक है, ठीक है ना। नाउ आई एम सेइंग कि दिस इज 7 ना, तो मान इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट्स से दिस इज 7, ठीक है, ये एलिमेंट तेरे पास 8 आ गया था, बड़ा था, लेट्स से दिस इज 5, ठीक है। तो ये 7 था, ये 8 था, ये 5 था। अब तू बोलेगा कि यार जो 8 है वो तो इससे बड़ा है, इसकी वैल्यू एक्चुअल में 6 होनी चाहिए थी, बट ये 8 है, ठीक है, तो इसको तो मेरे को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। व्हाट अबाउट 5 को रिड्यूस करना पड़ेगा तेरे को? ऑब्वियसली नहीं करना पड़ेगा, कॉज इसकी लोकेशन मेरे को 5 ही चाहिए थी, मतलब 5 पे मेरा काम चल जाएगा, राइट। तो वो जब मैं जब मैं राइट मूव कर रहा हूँ, तो मैंने ऑलरेडी इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट करके रखी होगी ना पहले, कि कितना अमाउंट चाहिए होगा टू मेक द लेफ्ट साइड ऑफ इट अ वैलिड एरे। ये तो मैंने कैलकुलेट करके रखा होगा पहले से ही। वो डी पी ऑफ लेट्स से दिस वाज द इंडेक्स 2, तो वो डी पी ऑफ 2 में पहले से स्टोर्ड होगा, राइट। तो मैं बस ये चेक करूँगा कि मेरे लेफ्ट पे कौन सा एलिमेंट है ऐसा जो वैलिड है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, जब मेरे को ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा जो वैलिड है, तो द ओनली थिंग दैट वुड रिमेन इज कि आई विल नो कि इसके बीच में कितने एलिमेंट्स है। तो आई विल नो कि ये वैलिड एलिमेंट जो है और जो करंट एलिमेंट है इसके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं। सो जो करंट एलिमेंट है वो था मेरा इंडेक्स, लेट्स से दिस वाज 4, दिस वाज इंडेक्स 3 एंड दिस वाज इंडेक्स 2, राइट। सो आई विल से इंडेक्स 4 से मैंने स्टार्ट करना है, उसके बीच में सिर्फ एक इंडेक्स आ रहा है दैट इज़ नॉट वैलिड। अब उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू 8। मेरे को उसकी वैल्यू बनानी कितनी थी? उसकी वैल्यू मेरे को बनानी थी 6, ठीक है। तो अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड होगी इसके लिए? 2। तो फिर मेरा डी पी ऑफ 4 कितना हो जाएगा? वॉट एवर वॉज द डी पी ऑफ 2 प्लस 2 इटसेल्फ। इतना लॉजिक क्लियर है? यस सर। चल ठीक है, अभी यही कोड किया हुआ है, अब इसको कोड तेरे को दिखा देता हूँ। ओके, दिस इज द कोड, राइट। इसका कोड भी एक्चुअली ईजी है। तो फर्स्टली आई एम मेकिंग 2 एरेज, या फिर एक मैंने फंक्शन ही डिफाइन कर लिया कॉस्ट एरे नाम से, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि पहले मेरे को एक लेफ्ट लोअर कैलकुलेट करना था ना, उसका नाम मैंने प्री दे दिया, ठीक है। और फिर मेरे को राइट लोअर कैलकुलेट करना था, तो या तो मैं उसके लिए अलग से फंक्शन बनाता, बट इधर थोड़ा ट्रिकी वे से मैंने क्या किया कि पहले रिवर्स कर लिया अपने एरे को एंड देन आई कैलकुलेटेड द सफिक्स एरे। तो बेसिकली बात तो सेम हो गई, या मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूँ, या फिर मैंने और फिर मेरे को राइट से लेफ्ट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैंने एरे इन्वर्ट कर दिया है, एरे अपना रिवर्स कर दिया, ठीक है। कुछ नहीं आएगा समझ तो बता दी तभी के तभी। कूल। सो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें एक प्रीसम मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो ये तो प्रीफिक्स मैट्रिक्स बना ली, या प्रीसम या प्रीफिक्स, हम कुछ भी बोल ले, ठीक है। उसके बाद अब मुझे वो चीज़ कैलकुलेट करनी थी कि मेरे लेफ्ट पे कौन सा फर्स्ट वैलिड इंडेक्स है, राइट। कौन सा फर्स्ट वैलिड इंडेक्स है, आई कैन डायरेक्टली यूज दैट। कूल। सो फर्स्ट वैलिड इंडेक्स करने के लिए मेरे को क्या पता करना पड़ेगा कि मेरे को ये बता दो कि मेरे जो लेफ्ट पे हैं वो कौन से एलिमेंट्स इनवैलिड है। तो एलिमेंट्स इनवैलिड कौन से होंगे? जिनकी जो खुद की वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी, राइट। जो मेरे ए आई माइनस आई से ग्रेटर होंगे वैल्यूज दैट आर इनवैलिड, उनको मेरे को कुछ ना कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा। मेक सेंस? हेलो Yes, हेलो, sir. या कूल। देन आई से कि जो लेफ्ट है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगी स्टैक से। ये मोनोटोन स्टैक है बेसिकली, ठीक है। सो लेफ्ट इज द नाउ द पॉइंट दैट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड, या फिर बोल सकता हूँ जैसे मैंने डी पी ऑफ 4 और डी पी का 2 का एग्जाम्पल दिया था ना, जिसमें 2 इंडेक्स वैलिड था। तो दिस इज द राइट मोस्ट इंडेक्स
which is lower than I and is a valid index which I can directly consume. ठीक है. Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं बोलूँगा कि इसको मैं डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता हूँ. तो जो इसकी इसकी कॉस्ट थी ना, कॉस्ट फॉर मेकिंग डीपी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे, उसको मैं ऐड कर दूंगा इसमें. ठीक है. और अगर ये एलिमेंट जस्ट टू माई लेफ्ट नहीं था, अगर मान ले जस्ट टू माई लेफ्ट होगा एलिमेंट, सो दैट वुड मीन कि उस जो मैं यूज़ कर सकता हूँ और जो करंट एलिमेंट है उसके बीच में कोई इंडिसेस प्रेजेंट नहीं है, राइट. तो अगर वो वाला केस नहीं है तो डेफिनेटली आई हैव सम इंडिसेस दैट आर बिटवीन दैट. उनको मेरे को रिड्यूस करना पड़ेगा खुद. ठीक है. अब रिड्यूस कैसे करेंगे? Yes, sir. तो रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले तो व्हाट यू नीड टू नो इज दैट उनकी एक पहले खुद से वैल्यू होगी, राइट. ठीक है. और उनकी वैल्यू कैसे पता कर सकता हूँ? प्रीसम से पता लग जाएगी ना उनकी वैल्यू मेरे को. तो प्रीसम ऑफ आई माइनस वन माइनस टिल द लेफ्ट प्लस वन एलिमेंट. दैट मेक सेंस. Sir. एंड मेरे पास टर्म्स कितनी आएंगी? तो टर्म्स कैलकुलेट तो इजीली कर सकते हैं ना हम. तो टर्म्स इज बेसिकली वॉट एवर एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन द आई प्लस वन एंड लेफ्ट. तो टर्म्स निकाल दी. अब उसके बाद मेरे को माइनस क्यों करना पड़ रहा है इधर? सो माइनस इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को उन सब वैल्यूज़ को जीरो तो बनाना ही नहीं है ना. इधर मैंने सीधे बोल दिया कि इतना इतना माइनस कर दो उसमें से, मतलब इतनी इतनी वैल्यूज़ जो है उतने तुम ऐड कर दो अपने कॉस्ट में, तो इतना कॉस्ट लगेगा. तो बेसिकली आई एम सेइंग कि सब वैल्यूज़ को जीरो बना दो. बट मुझे जीरो तो बनानी नहीं है. आई वॉन्ट टू मेक, लेट्स से अगर मेरा जो लेफ्ट एलिमेंट था दैट वॉज मतलब मेरा राइट एलिमेंट जो करंट एलिमेंट है दैट इज़ 8. तो आई वॉन्ट कि उसके जस्ट लेफ्ट वाला 7 हो जाए, उसके लेफ्ट वाला 6 हो जाए, सो ऑन सो फोर्थ, राइट. सो उसके लिए आई यूज़ दिस फार्मूला. दिस इज अ स्टैंडर्ड AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला दैट इज n by 2 into a plus l. So this is n, this is divided by 2. This is the first term that is a, so a, and this is the last term that would be l. Cool enough? Yes, sir. और समझ आ गया ना? वैसे एक बार अगर वापस पढ़ना होगा तो डेफिनेटली मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा वैसे यूट्यूब पे, तो यू कैन चेक दिस आउट. बट यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट, राइट. Yes, sir. उसके बाद ये मेरे पास दो एरेज आ जाएंगे, प्रीफिक्स सफिक्स, और सफिक्स प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों एरेज आ जाएंगे. दैट इज़ बेसिकली लोअर लेफ्ट या लोअर राइट जो तेरे को बताया था मैंने. ठीक है. उसके बाद विल गो फ्रॉम आई इज इक्वल टू जीरो टू एन. आई विल कंसिडर दैट द ith एलिमेंट इज द एलिमेंट एट विच आई एम गोना ब्लास्ट. ठीक है. तो इफ़ आई एम गोना ब्लास्ट एट द ith एलिमेंट, तो उसकी वैल्यू मतलब मेरे को कितना कॉस्ट चाहिए होगा? तो बेसिकली पहले उसका मेरे को लेफ्ट एरे सही बनाना पड़ेगा, उसका फिर राइट एरे भी सही बनाना पड़ेगा, और उसकी जितनी खुद की कॉस्ट है उसको ऐड करना पड़ेगा उसमें. ठीक है. बस ये था इसका लॉजिक. दिस वाज द एंटायर लॉजिक. कूल ब्रो. Yes, sir. कूल देन. लेट मी गेट बैक टू डिस्कॉर्ड. हाँ भाई, किसी को और डाउट कोई? प्रणब भाई, मैंने शेयर किया है क्वेश्चन डाउट वाले में, एक बार देख लो ना. क्या है ये? ये मॉर्निंग वाला ही क्वेश्चन था. अच्छा. ओके. यू गिवन एरे, टेक एनी टू एंटिटीज एंड ऐड. ये वही था ना, क्या बोलते हैं इसको, जीसीडी वाला. ओके. हाँ, ये समझा आता जीसीडी हूँ. वाला. अच्छा, देखो क्या समझना है कि जीसीडी से ऐसा होता क्यों है, ये समझना है. नहीं, एक्चुअली कैसा था यार कि नॉर्मली मैंने डीएस से अभी स्टार्ट किया. ठीक है. अभी ये सारे जो क्वेश्चंस है ये मेरे को एक्चुअली सीपी लेवल के लग रहा है. इसमें जो हाँ, कंस्ट्रेंट्स है, जो लॉजिक यूज हो रहा है ये मैथ्स अभी है बेसिकली इन्फोसिस यार. में. हाँ, मतलब ये एडवांस टॉपिक्स के शायद से कुछ ग्राफ थियरी वगैरह की कुछ क्वेश्चंस नहीं है ये सारे. नहीं नहीं नहीं, ग्राफ थ्योरी नहीं है, इट्स सिंपली मैथ्स. तो देख, कंसेप्ट ये है कि लेट्स से आई हैव सम नंबर ए एंड नंबर बी, राइट. ठीक है. और मैं a माइनस बी या b माइनस ए कर करके, जैसे मान ले a माइनस बी करूँगा तो मेरे पास c आ जाएगा. ठीक है. फिर b माइनस हाँ. ए करूँगा तो मेरे पास d आ जाएगा. अगर मैं ऐसे सारे हम्म. कॉम्बिनेशंस करता रहूँ ना, तो इफ देयर GCD इज एक्चुअली 1, ठीक है, तो उस केस में आई कैन फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to b. मान लो a हाँ. इज लेस देन b, तो आई कैन फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to b. दिस इज अ बेसिक स्टफ. अब इसका प्रूफ तो मैं नहीं दे रहा इधर, बट थोड़ा नहीं ट्राई करेगा नहीं, तो समझ एक्चुअली जाएगा प्रूफ. नहीं नहीं, ये भाई मैंने जब ये क्वेश्चंस था ना तो फिर मैंने ट्राई किया. जैसे 2 और 5 वाला एग्जांपल था, हाँ. तो मेरा यही था कि मैं सबसे पहले मिनिमम डिफरेंस निकालूंगा. वो एपी वाला मैं यूज कर रहा था, टीएन वाला पार्ट, कि अगर किसी भी पॉइंट पे मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 हो जाएगा, हाँ. तो फिर मैं सारे एलिमेंट जनरेट कर सकता हूँ मैक्सिमम एलिमेंट तक.
वो मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि अगर यार 2 और 5 वो है। करेगा तो टीएल ही आ जाएगा ना उसमें, अगर तू कॉमन डिफरेंस चेक करना लग हाँ, जाएगा तो। वही वही था इशू कि वो हम्म। मुझे टीएल ही दे रहा था, को क्योंकि तो मैं देख, सारे फिर हाँ, कैलकुलेट कर रहा था। अब इसको बेसिकली देखेगा तो 2 और 5 क्या है तेरा, तो 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो 5 - 2 करेगा 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा तेरे पास 2 3 5। फिर 2 - 3 करे तो 1 हो जाएगा, इधर 1 भी आ जाएगा, अब इससे फिर मैं ठीक है। 5 रिटर्न कर सकता हूँ। हाँ तो मतलब तेरे पास अब 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं है तेरे पास, राइट। तो 5 - 1 करेगा तो 4 भी हम्म। आ जाएगा। अब इसके आगे तो हम्म। प्रोड्यूस नहीं कर सकता कुछ भी, ठीक है। पर तेरे पास नहीं। 1 to 5 आ जाएगा। तो बेसिक लॉजिक है कि अगर तेरे पास 2 एलिमेंट्स है ना, ए और बी, तो तू हम्म। उनका जो जीसीडी होता है ना, ठीक हम्म। है, ओ सॉरी, अगर तेरे पास ए जीसीडी ऑफ ए बी मान ले तेरे पास आता है सम वैल्यू डी, ठीक है। तो तू डी से नीचे वैल्यू नहीं बना सकता कुछ भी, ठीक है ना, ए हम्म। और डी, ए और बी है, बराबर। ठीक है, ठीक है। तो ऑल द वैल्यूज दैट यू कैन मेक वुड एक्चुअली बी अ मल्टीपल ऑफ डी, ठीक है। क्योंकि देख, हम्म। अगर तू ए और बी को सब्ट्रैक्ट करता है, तो लेट मी राइट इट एज एक्स इंटू डी, बिकॉज दोनों मल्टीपल ऑफ डी हैं अगर उनका जी सी डी डी आता है तो, ठीक है। लेट मी राइट इट एज वाई हम्म। इंटू डी, ठीक है। दिस हम्म। बेसिकली बिकम्स डी इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स तेरे माइनस वाई। जो भी वैल्यू बनेगी ना तेरी, वो डी के मल्टीपल हम्म। आएगी हमेशा, मेक हम्म। सेंस, ठीक है। तो इसकी वजह से यस। तेरे पास जो भी नंबर्स बनेंगे, दोज ऑल द नंबर्स वुड बी डिविजिबल बाई डी इटसेल्फ। अब हम्म। सिंस तेरा बड़ी वैल्यू लेट्स से इधर बी है, ठीक है, बी इज द ग्रेटर वैल्यू दैट यू आर हैविंग, तो 1 से लेके बी तक, राइट, तो बस कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, दैट वुड बी डिविजिबल बाई डी। दैट कैन सिंपली बी सेट कि बी बाई डी होती है वैल्यूज, दैट इज डिविजिबल हम्म। बाई डी, राइट। तो बस यही आंसर था। ओ भाई, यार भाई ये लॉजिक ये सब बनने में कितना टाइम लग जाएगा? एक्चुअली मुझे हो गया है कुछ 70 80 डेज हो गया है, क्योंकि मैंने स्टार्ट नहीं किया था। अब मैंने स्टार्ट कर लिया, बेसिक सारे टॉपिक्स एक बार कवर कर लिए, डीपी ग्राफ्स वगैरह बेसिक आइडिया सबका आ गया। लेकिन अभी भी मैं कॉन्टेस्ट देता हूँ, जैसे लास्ट 2 कॉन्टेस्ट से ना मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं, मतलब थोड़े ट्रिकी। ऐसा नहीं कि कोड ज्यादा लिखना है, कोड डिसेंट ही लिखना है लीड कोड पर, लेकिन वो मतलब लॉजिक क्लिक होने में टाइम लग रहा है काफी। प्रोफाइल शेयर कर दे यार, अभी प्रोफाइल डिस्कशन भी होने वाला है तो उसमें मैं तो आ लीड सकते हैं। कोड की प्रोफाइल शेयर करता हूँ। कुल, शेयर कर दे। ऑफ टॉपिक में बोल रहा है क्या एक कुछ? मिनट। इज इट आउट डिस्कशन? Felon, are you still there in the call? So he's not in the call. It's cool. Uh, भाई इन द मीनवाइल किसी और को कोई डाउट है तो बता दो, फिर प्रोफाइल डिस्कशन करेंगे एक बार बैठ के ढंग से। हाँ, मैंने शेयर किया है सर अभी। तेरी प्रोफाइल आई नहीं है भाई इधर। कौन से ग्रुप में शेयर करना था? डाउट क्लियरिंग में शेयर कर दिया नहीं, मैंने। प्रोफाइल डिस्कशन में कर दे यार। ओके सो अच्छा अच्छा। Felon, shall we start with you? Yes, yes, sure, sir. Cool, bro. Let's see his profile. Okay. So, Felon, what's the problem? Like, your problem is that you're still in the newbie level. Yeah, what's the exact problem? So the exact problem is like I just started now doing the harder problems. Like earlier, my graph is saturated because I only do for the like these to maintain a streak, like daily solving 1 800 problem or something. But now I just find it like I'm just following a strategy like to solve for every rating solving 40 problems. So like, is this a good way to go or should I change something? Acha, okay, bhai. So see, if you're comfortable in Hindi, you can go for Hindi. If it's English, you can go for English. So that's the first thing. Other than that, so I should be telling the stuff in Hindi or English. Like, what are you comfortable with? Whichever I think whichever way you find comfortable. Like others are also listening, so I'm not sure about that. Cool, no worries. Okay. So see, the point over here is that you're saying that you're solving 40 problems from each of these categories, right? Yes, yes. What I'll say is that you have already solved 70 problems from this 800 category, and you already are at the 900 level, and you somewhere are consistent around here, right? So Yes. right now you're being at the 900 level only. So the thing is that you're not solving more questions of this particular level, let's say of 1100 or 1200, right? So till the time you're not solving, so the basic formula over here is that whatever level you are at, you should solve problems of plus 200 level. So if you are at 900 level right now, you should focus more on the 1100 to 1200 range. Okay. Okay, because it's obviously beneficial that if you even if you are solving the 800 level problems,
because that would help you to solve the problem A faster. Cool. But if you want to solve the problems B and C as well, and only then your graph is gonna grow. That makes sense. So for that you Yes. need to start solving these problems. In your thing, let's see the type of problems you have solved. So you have solved 127 implementation based question. These are probably gonna be the A problems, right? Yes. Then maths Most can of all, it. yeah, most of A would be here. Greedy could be A or B. It could be actually C and D as well, but most of the times it's gonna be A and B, considering that you have solved more problems over here. See the okay. So are you comfortable with graphs, DP, etc.? No, no, no. They are just like new topics to me. Okay, so I haven't studied much then. which year are you in? Currently, I'm in my second year, third sem. Okay, so see, the thing is that it could be the case that you have not already studied graphs or DP and stuff, right? So in Yes. that case, what I'll suggest you to do is that you should definitely practice the concepts you already have a hands on, right? So if you already know greedy strategy, or you already know questions of strings, sorting, or maybe heaps, definitely do those. But alongside, what I'll suggest you to do is that at least start doing some questions on graphs, etc. So at least start studying them, because if you'll rely on your course syllabus, that you'll do it slowly and steadily, in that kind of a scenario it's really gonna take you long, and you might even get frustrated after a while. Because what happens is that sometimes so one could say that okay, you can always solve A and B without the knowledge of graphs or DP or any of those data structures, and that's absolutely correct, right? However, the problem is the B question a lot of times is heavy on intuition, right? So it's possible that even sometimes I feel stuck. Let's say even sometimes for the cases that I'm able to solve A, C, and D, and B is not solvable by me, because B is such kind of a question that if it clicks, you'll be able to solve it. If it doesn't, then you'll get stuck over there. So in order to get out of that kind of a scenario, what I'll suggest is that definitely practice these kind of questions. Like you should practice the question in the range 1100, 1200, and meanwhile also start studying these concepts, graphs and DP and stuff. I'll not expect you to go for segment trees or tries, right? Or even lazy propagation or anything of that sort. But at least start with the basic stuff of graphs and DP. And yeah, definitely binary search. Cool. Okay, sir. One more question. Like I recently completed a playlist on YouTube regarding binary search. So like I understood some standard problems, but like where you suggest to practice on that? Like when I go to like on code forces, Uh-huh. there may be like multiple ways to solve like one question. Like you can do either binary search or sometimes it can also do with the done with the brute for also. Right. So yeah, that's like even for Okay. graph and the DP like problems, they are like more of pattern or some like standard problems I can find. But like where to start practicing, like Okay. solve them on code Yeah. forces only. No, no. So the thing is that binary search, I can just talk about binary search right now, because binary search is one of the topics I'd already thought that I'll teach on Sunday. So on Sunday, there's another YouTube channel that already asked me to, like collaborate with them, and in their Discord server and in our Discord server, we'll make a common link, and I'll be teaching some questions from binary search. Cool. So, like in a brief, I'll give you an overview, because I personally feel that most of the people don't exactly understand binary search. So binary search for them is actually limited to finding an element in a sorted array. Now, binary search is actually a lot more than that. So I wanted to teach binary search in a bit detail. So on Sunday, I'll definitely be having a lecture on that. So you can join that. I'll definitely be posting the link in the Discord server as well. Cool. So you can go through that, go through that series or go through that lecture on Sunday. After that, I think that you'll somewhat be comfortable with binary search at least. And the thing is that right now you just solved 16 problems in total, right? Now the thing, now binary search is such a problem that it's used at multiple scenarios. So 16 is actually a pretty small number considering binary search particularly. So you should start solving more problems if you really want to get some more depth, or you want to get some more width, I'll say, right? If you want to practice more problem, you can go for CodeChef and LeetCode as well. But definitely Codeforce is the best platform you can go for. Make sense? Okay, sir. Thank you. Cool, bro. Okay, back to Discord. Okay, whose profile needs to be reviewed next? Anyone? Bhai, you can review mine. Cool. अच्छा विकास कोडर. So कोडर जी, you don't have a क्या बोलते हैं उसको अपना कोड फोर्सेस प्रोफाइल?
हाँ नहीं भाई, अभी सिर्फ लीड कोड स्टार्ट किया है मैंने। ओके, कितना टाइम हो गया लीड्स को स्टार्ट किए हुए, मतलब? यही जो लास्ट जो कंटिन्यूस ट्रिक है ना, इतना ही मैंने स्टार्ट किया अब लीड कोड पर। अच्छा, हाँ ठीक ठाक टाइम हो गया यार। तो ट्राइंग टू ऑब्जर्व पैटर्न कि कैसे कर रहे हो सॉल्व। तो यू हैव ओनली गिवन लाइक कितने कॉन्टेस्ट, 3 कॉन्टेस्ट फ्री राइट? कॉन्टेस्ट। व्हाई इज इट सो, कॉन्टेस्ट क्यों नहीं देते मतलब, व्हाट्स द नहीं, प्रॉब्लम? अभी मैंने स्टार्ट किया कॉन्टेस्ट देना, वो बीच में वो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि हो जाएंगे, टॉपिक्स कवर नहीं किए थे तो फिर वो टीएलई आ जाता था और फिर वो क्लियर नहीं होता था एडवांस टॉपिक्स, मतलब अगर सॉल्यूशंस भी देखा तो समझ में नहीं आता था सॉल्यूशंस क्या तेरे को किया है सामने वाले तेरे ने। को अभी टॉपिक सारे आते हैं, मतलब रिकर्जन, ग्राफ्स, डीबी सब अभी आता मैंने है? टॉपिक्स, हाँ अभी टॉपिक सारा कवर कर लिया मैंने, एक मतलब लेवल 1 तो एटलीस्ट सारे कंप्लीट कर लिए, डीपी, ग्राफ्स, रिकर्जन, कर बाइनरी लिया ना? डीबी, एसटी, सारी चीजें। स, हाँ, अ, इधर अ, देखो ना भाई, स्किल्स में सारे टॉपिक्स के सम सॉल्व किए, बेसिक्स मैंने। अबे नहीं, इधर मैं पता क्यों नहीं देखता, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि मतलब वो क्वेश्चन देखते हैं, सोल्यूशन नहीं पता लगता तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो इधर से ना थोड़ा नहीं। कम पता लगने लगता है, तो इसलिए ओके, इफ यू आर सेइंग सो दैट देन इट्स फाइन। ओके, लेट्स सी दिस। सो बाइनरी ट्री इज डन। भाई लिंक लिस्ट नहीं कर रखा तूने? लिंक लिस्ट मतलब काफी आसान था वो, उसके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ही थे, मतलब जो बेसिक उसमें एचडी शीट थे, स्ट्राइवर बाई की एचडी शीट फॉलो कर रहा था। हम्म। तो उसमें मतलब मैंने पहले ही सुमित सर वेब कोडिंग वाले, उन्होंने जो कराया था अपने लेक्चर में, पहले मैं सिर्फ आईडी पे कोड कर रहा था, तो अच्छा, उसमें ऑलरेडी वो कवर हो चुका था, इस वजह से मैंने फिर लीड कोड पे नहीं सॉल्व किया। कूल। देख, एक एडवाइस देता हूँ बढ़िया सी। सो व्हाट यू कैन डू इज एटलीस्ट कॉन्टेस्ट दे, ठीक है? अभी संडे को कॉन्टेस्ट होगा, सैटरडे को है नहीं इस बार, तो कॉन्टेस्ट दे। हाँ। इट्स पॉसिबल दैट यू ए बी से सॉल्व हो जाने चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम से, ठीक है? और होता क्या है कि उसके बाद सी डी जनरली टफ होते हैं थोड़े, ठीक है? तो सी डी के लिए हम्म। मैं एडिटोरियल्स बनाता हूँ ऑलरेडी, यू कैन गो थ्रू देम, उससे तेरे को हेल्प मिल जानी चाहिए। इन केस स्टिल पता नहीं लगता, यू कैन सेव योर डाउट, फिर डाउट डिस्कशन में पूछ सकता है मुझसे। द ओनली थिंग आई हम्म। एक्सपेक्ट टू नो इज द बेसिक स्टफ। जैसे मान ले कोई क्वेश्चन आ गया डीपी का, ठीक है? अब मैंने हम्म। पूरा क्वेश्चन लॉजिक समझा भी दिया, या फिर देखो एक स्पेसिफिक हम्म। एग्जांपल दूँ, तो इस बार एक क्वेश्चन आया था दैट वाज बेस्ड ऑन सम प्राइम नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? अब हम्म। उसमें मैंने इतना एजम्पशन लिया था दैट यू पीपल एटलीस्ट नो हाउ टू मेक सेट्स यूजिंग रिकर्जन। ये मेरा एजम्पशन था उसमें, बेसिक मैंने पहले बोल दिया था, इतना इतना आई एक्सपेक्ट यू टू डू। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि एक मतलब क्वेश्चन जो मैं 10 मिनट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पहले मैं उसके लिए रिकर्जन एक्सप्लेन करूँ और फिर आधा घंटा खराब करूँ, ठीक है? तो वो एक बेसिक अगर नॉलेज है तुम्हें ऑलरेडी, देन एटलीस्ट स्टार्ट गिविंग कंटेस्ट, ठीक है? कंटेस्ट के बाद आई ऑलवेज अपलोड ट्यूटोरियल्स, ठीक है? और हम्म। एडिटोरियल्स। तो उसके उसके साथ जाके यू यू कैन एक्चुअली गेट टू नो दैट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड इंट्यूशन क्या रहनी चाहिए, तो वो सब क्लियर हो जाएगा। हम्म। कूल इनफ? भाई ये जो स्टार्टिंग के दो कॉन्टेस्ट थे ना, स्टार्टिंग के दो कॉन्टेस्ट में आई वाज एबल टू सॉल्व ओनली वन। उसके बाद जब ये एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे तो आई वाज लिटरली फेड अप, कि मैंने बोला यार अभी थोड़ा पहले टाइम देते हैं, सीख लेते टॉपिक्स। तो कॉन्टेस्ट के बाद मैं क्या करता था कि मैं देखता था क्वेश्चंस को। सो उसके बाद वो कॉन्टेस्ट में आई वाज, मतलब मैंने कॉन्टेस्ट नहीं दिया था, लेकिन फिर उसके बाद जैसे कॉन्टेस्ट खत्म होता तो वर्चुअल कॉन्टेस्ट देके आई वाज एबल टू सॉल्व टू क्वेश्चंस, स्टार्टिंग का इजी वाला एंड मीडियम का 4 पॉइंट्स वाला। ठीक तो है। जब मुझे लगा कि दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो मैंने बोला अब मैं कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर सकता हूँ, कि अभी वापस से मतलब एक क्वेश्चन तो बढ़ रहा है, मतलब एक्चुअली एक क्वेश्चन तो बढ़ गया पहले से, तो अब हम लोग राइट। धीरे धीरे करके 2-3 हो जाएगा। फिर जब मैंने लास्ट कॉन्टेस्ट दिया ना, उसके जो जो क्वेश्चन आए थे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वाले, तो वो एक्चुअली सिर्फ मैथ ट्रिक के ऊपर बेस्ड थे, ओके, मतलब वो ट्रिकी क्वेश्चन थे थोड़े से, कौन सा वाला बिट कॉन्टेस्ट था? मैनिपुलेशन। ये लास्ट सैटरडे वाला, लास्ट सैटरडे। लास्ट सैटरडे को कौन से एक मिनट रुक जा, देखता हूँ यार। लास्ट सैटरडे को लॉकड आउट क्यों दिखा रहा है अकाउंट? एनी हो, लास्ट कॉन्टेस्ट एंड सैटरडे वाला ये था ना? भाई वीकली वाला, यस। अकाउंट क्यों लॉग आउट कर दिया उन्होंने मेरा? एनीवे, बाय द टाइम इट्स लोडिंग, व्हाट आई विल से इज कि यार क्वेश्चन जैसे मर्जी आए, मे बी इट्स बेस्ड ऑन मैथ्स ट्रिक या कुछ भी हो सकता है, ठीक है? एट टाइम्स यू विल फील कि यार ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, क्लिक नहीं हुआ, बहुत कुछ होता है, ठीक है? इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोना हैपन, बट द एंटायर पॉइंट इज दैट यू नीड टू स्टे मोटिवेटेड, यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट। फर्क नहीं पड़ता यार, तू आज एक क्वेश्चन कर रहा है, तो 3 क्वेश्चन कर रहा है, 4 कर रहा है। द पॉइंट इज दैट इवन इफ यू आर जस्ट सॉल्विंग अ सिंगल क्वेश्चन एंड यू आर एक्चुअली थिंकिंग रियली हार्ड अबाउट द सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, देन सम वे और द अदर यू गोना लर्न सब स्टफ, ठीक है? तुम गलत अप्रोच पे भी जा रहे हो ना, तो कॉन्टेस्ट के बाद जब तुम बराबर। एडिटोरियल देखोगे ना, तो यू अंडरस्टैंड दैट वाई यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग अप्रोच, उसको तुम कैसे इंप्रूव कर हम्म। सकते हो, एंड तुम ऐसा क्यों कर रहे हो।
तो ये चीज़ें समझ आने लगेंगी ना, तो हमें चाहे पता नहीं लगे कि कितनी बेनिफिशियल है चीज़, बट ये आज मेरे को पता लगता है जब मैं अपनी कोई प्रोफाइल खोलता हूँ ना। लेट्स से मैं लीड कोड तो कर ही रहा था पहले भी, और पहले भी मैंने 1200 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे पिछले साल तक, ठीक है। बट नाउ व्हेन आई सी अ क्वेश्चन दैट आई ऑलरेडी सॉल्व्ड 2 years ago एंड आई राइट द कोड नाउ फॉर दैट द सेम क्वेश्चन, तो कोड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो बिकॉज मुझे 3 महीने में ही फर्क पता चल गया था भाई, हाँ, तो भाई वो जब स्टार्ट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आई से यार कॉन्टेस्ट दे लो, अभी इतना कोई वर्क प्रेशर भी नहीं होगा कि भाई काम बहुत ज़्यादा है, टाइम नहीं निकल पा रहा। एक्चुअली भाई आई वाज फ्रॉम नॉन सीएस बैकग्राउंड, तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग 21 में ही कंप्लीट किया था। हम्म। तो आई नाउ स्विच टू आईटी डोमेन एंड वर्किंग इन इन्फोसिस एज अ सिस्टम इंजीनियर। कौन सी ब्रांच से है भाई तो? तो इन्फोसिस में नहीं नहीं, ब्रांच कौन सी है? मेरा मैकेनिकल था। मैकेनिकल था ना, तो देख अगर जैसे थर्मो पढ़ा जा रहा है और एफएम पढ़ा जा रहा है ना, तो सी एस इज लाइक हाँ केक वर्क फॉर यू। तो वो तो बहाना हो जाएगा अगर तू बोलेगा कि भाई नहीं हो रहा, तो दैट्स नहीं, दैट्स मेरे से सिंपल। बोला ना भाई, बोला ना मैंने सारे मतलब ये कवर कर लिए ना टॉपिक्स। अच्छा ये था ना, ये था ना। हाँ, ये सेकंड वाला मिनिमम स्कोर बाय चेंजिंग टू एलिमेंट्स, ये तो मैंने बाद में कर लिया था, फिर मुझे उसका ओके, लॉजिक समझ में आ गया था। अब एक था मिनिमम इम्पॉसिबल और राइट। हाँ, और एक आई मिनिमम गेट इट। इम्पॉसिबल और वाला था वो, यार ये कुछ टू वाला डाउन है क्या? लॉजिक जो था। लीड कोड कुछ डाउन है क्या? मतलब लोड ही नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है ये? किसने क्रैश कर दिया लीड कोड? एनीवे भाई ये देख, हैंडलिंग सम क्वेरीज तो यार उस पे बेस्ड था ये, लेजी सेगमेंट ट्री पे, ठीक है। सेगमेंट ट्रीज, क्या कह रहे हैं? सेगमेंट ट्रीज वाले नहीं, टॉपिक पे बेस्ड था सेगमेंट ट्री शायद भी ये। नहीं, इट इज लेजी सेगमेंट ट्रीज। तो सेगमेंट ट्री भी एक्सपेक्टेड होता है कि तुम्हें पता होगा, बट लेजी सेगमेंट ट्री इज नेक्स्ट लेवल थिंग, ठीक है। तो लेजी सेगमेंट ट्री उसका भी वेरिएशन है, सेगमेंट ट्री का भी वेरिएशन आता है, ठीक है। उस पर बेस्ड था ये। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ये तुम्हें पता होगा नहीं, मिनिमम। मुझे नहीं पता था, हाँ डीएसए तो में कवर ही नहीं किया था इट्स part। इट्स एब्सोल्युटली कूल यार, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, वो एडवांस टॉपिक है। मतलब सेगमेंट्री को खुद एडवांस बोलते हैं, ये उसका भी एडवांस टॉपिक है, ठीक है। तो हैंडलिंग को तो चल लेजी सेगमेंट्री पे था। ये क्या क्वेश्चन था वैसे? मिनिमम और वाला था ये, ओके सो कि कितने अच्छा ऑपरेशंस लगेंगे। हाँ। कूल, ये तो इजी इजी था, मतलब ठीक है, नहीं हो पाया तो इट्स कूल, बट यार हाँ, वो क्वेश्चन इज क्लियर इजी। नहीं हुआ वो टाइम पर, वो क्या टाइम कह पे रहे हैं? क्लियर नहीं हुआ था। अब बाद में हो गया था वो ना टाइम पे क्लियर? क्लिक। बाद में हो गया था क्लियर? हाँ, बाद में जब एडिटोरियल वगैरह देखा तो फिर क्लिक हो गया, अच्छा देख ऐसे द था। बेनिफिट ऑफ लाइक डूइंग द क्वेश्चन इन द कॉन्टेस्ट इटसेल्फ इज, बिकॉज मैंने भी जब ये क्वेश्चन किया था ना, तो मैंने ये सोल्यूशन नहीं लिखा था इसका, मैंने कोई ऐसे 50 लाइन का सोल्यूशन लिख दिया था बहुत बड़ा सा, कॉन्टेस्ट में एटलीस्ट, ठीक है। हाँ, मैंने हाँ, वो कमेंट भी किया था उसमें। अच्छा किया था। हाँ तो हाँ, लिंक्डइन पर भी किया था उसको। ओके, सो द थिंग इज कि यार जब तुम इतना बड़ा सोल्यूशन लिख दोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि व्हाई यू आर राइटिंग सच अ लॉन्ग सोल्यूशन एंड स्टफ। कूल। तो उसकी वजह से तुम्हें बाद में समझ आती है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ तुम गलत करते हो, दिस इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली इंप्रूव। अगर यही क्वेश्चन मैं डायरेक्टली बाद में करता ना कॉन्टेस्ट के, तो एक टाइम के बाद मैं वही सोल्यूशन देख लेता कि बेस्ट पॉसिबल वे क्या है इसको करने का, बिकॉज मेरे दिमाग में पता लग जाता मुझे कि हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको। देन आई से कि ठीक है, इसको बेस्ट बराबर। पॉसिबल वे देखते हैं। तो वो उतनी ना चीज़ हम्म, एनरिच नहीं हो पाती फिर। तो दैट्स माई जेनरिक हम्म। एडवाइस कि भाई कॉन्टेस्ट ज़रूर दो एटलीस्ट। नहीं हो रहा क्वेश्चन कोई बात नहीं है, एटलीस्ट तुम सीखोगे कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट देने से। भाई लेकिन यार अभी एक ही डाउट था, ये अभी मतलब सीपी का तो टाइम नहीं है मेरे पास, इतना तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि सीपी इज अ लॉन्ग जर्नी। और सिर्फ डीएसए में देख रहा हूँ तो अभी जो इसके क्वेश्चंस है ना, इसके क्वेश्चंस का भी लेवल अप हो चुका है। किसके? इवन जो इन्फोसिस के पावर प्रोग्रामर के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, हम्म। कि डीएसए के थ्रू डेजिग्नेशन अप्रेजल मिल जाएगा, मतलब डायरेक्टली, ओके। अगर इफ यू क्लियर योर एग्जाम ऑफ पावर प्रोग्रामर बीइंग वर्किंग इन इन्फोसिस। तो जब मैं उससे क्वेश्चंस देखता हूँ ना, तो इट इज मोस्टली ऑफ कॉन्टेस्ट ऑफ कोड फोर्सेस, लाइक कि सारे क्वेश्चंस उसके स्लाइट वेरिएशन, जैसे मैंने आज ये क्वेश्चन भेजा था आपको, हम्म। तो फिर ये क्वेश्चन मैंने लीड कोड पे ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन नहीं देखे थे पहले। यार देख जो तूने क्वेश्चन भेजा था ना, आई नॉट से इट्स लाइक हम्म। कोड फोर्सेस क्वेश्चन, बट हाँ वो स्टैंडर्ड लीड कोड का क्वेश्चन भी नहीं था, इट वाज समवेयर इन द बिटवीन। मतलब लीड कोड पे ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं हाँ, बट कम, नहीं है। मतलब थोड़े कम होते हैं ऐसे हाँ, क्वेश्चन लीड कोड पे, पर होते हैं ऐसे वाले भी होते हैं, ठीक है। तो वही बात है यार कि अगर तो तुम्हें सब कुछ सीखना है ना, इफ़ यू वांट 100% गारंटी कि तुम किसी भी कंपनी में बैठोगे एंड यू विल नो व्हाट टू डू राइट, तो वो तो यार सीपी के साथ ही हम्म, आएगी। ऑब्वियसली सीपी से पहले अगर तुम डीएस से कर रहे हो, तो इट हैज़ एडेड एडवांटेज कि तुम्हें एटलीस्ट टॉपिक्स पता होंगे, तो सीखने का थोड़ा सा जो कर्व होता है वो ईजी बन जाता है। बट फिर भाई तुम्हारे लेकिन अगर मोस्टली एम्बिशंस बड़े लोग हैं। तो बोलते हैं कि सीपी इज नॉट मैंडेटरी, सीपी इज नॉट मैंडेटरी, नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट ऐसा वगैरह हाँ वगैरह। तो भाई देख, सिनेरियो ये है, मैंने एक वीडियो भी डाली थी पहले स्टार्टिंग में। तो देख, द एंटायर पॉइंट ऑफ कंपनीज आस्किंग यू
प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू टेस्ट हाउ फास्ट योर ब्रेन वर्क्स और हाउ वेल योर ब्रेन वर्क्स, राइट, या तुम कितना सीख सीख पाओगे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा लीड कोड कर रहा है, हर बंदा ही कर रहा है, ठीक है। और अगर लीड कोड से सारे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैंने खुद 1700 क्वेश्चन कर रखे हैं यार, ठीक है। तो भाई अब मेरे से तुम हाँ, पूछोगे मैंने तो मेरे आपकी को प्रोफाइल देखी है। हाँ, तो मेरे को प्रोफाइल देखी पता है, है। मेरे को क्वेश्चन नहीं पता होगा कि ठीक है ये ऐसे सॉल्व होना है, ठीक है। अब मैं 1721 क्वेश्चन कर रखे हैं। अब नॉट डन मे बी लाइक कितने टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें, 2200 के आसपास होंगे, 500 क्वेश्चन होंगे जो मैंने नहीं किए। 25 25 नहीं, वो 25 2500 में ना वो पावर शेल वाले भी क्वेश्चन भी हैं और एसक्यूएल वाले भी हैं, ठीक है। तो 2200-2300 अच्छा। के आसपास है, ठीक है। तो उसमें हार्डली देयर वुड बी लाइक 400-500 क्वेश्चन जो मेरे को नहीं पता। बाकी तो मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व ही कर रखे हैं। अब मैं रट्टा मार के अगर आंसर दे दूँ तो कंपनी कैसे वेरीफाई करेगी बंदे को आता भी है कुछ कि नहीं आता, ठीक है। तो फॉर दैट दे हैव टू आस्क मोर एडवांस्ड concepts, दैट्स ऑब्वियस, राइट। So that's where now companies have started asking CP and stuff, so that to filter out the valid candidates. Because CP में ना अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब मान ले मैं ग्राफ में DFS का वेरिएशन पूछता हूँ तेरे से, अब तेरे को तूने DFS ढंग से पढ़ ली है, चाहे तेरे को उसकी बराबर। वर्किंग पता ही नहीं है, बट तेरे को पता है कि इधर DFS लग सकती है और DFS का ये कोड है, तो कर देगा। तो हाँ। बेसिकली लीड कोड के हाँ। आधे ज़्यादा क्वेश्चन कर लेगा सॉल्व। अब मैं तेरे को वही बराबर। कोड फोर्स के क्वेश्चन पूछ लूँगा ना, कोई वेरिएशन लगा के, जहाँ पे भाई तेरे को उसके अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, तो वहाँ पे पता लग जाएगा मेरे को कि वैलिड कैंडिडेट कौन सा और किसने रट्टा मारा हुआ है। बराबर। इवन जब स्टार्ट में मैंने कोड करना स्टार्ट किया था तो ऐसा होता था कि मेरा प्राइमरली एग्जाम मतलब एम ही यही होता था कि मेरे से खाली क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ओके। तो उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी स्पेस कम्प्लेक्सिटी वाज नॉट दैट गुड। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस मतलब एक्सेप्ट हो रहे थे, मतलब ऐसे कि 10% फास्टर है, 5% फास्टर है, मतलब इवन ब्रूट फोर्स का भी ब्रूट फोर्स होता था वो। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि मतलब ठीक है, सोल्यूशन लिखना एक अलग चीज है एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन लिखना एक अलग चीज है। तो हाँ। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मतलब राइट। थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज करना या फिर डिफरेंट एडिटोरियल के सॉल्यूशंस पढ़ना कि उन्होंने कैसे किया हुआ है, यू आर तो राइट थोड़ा सा एक्चुअली। एक जनरल एडवाइस दे रहा हूँ, मतलब आई थिंक कि हेल्प करेगी थोड़ी। तो द पॉइंट इज कि इफ़ यू आर थिंकिंग कि तुम डीएसए करोगे तो डीएसए में ना उतनी किक नहीं मिलेगी, बिकॉज इट्स लाइक यू आर जस्ट लर्निंग समथिंग, कोई बेनिफिट नहीं, मतलब उससे कुछ हो नहीं रहा आगे। बट सीपी का एक फ़ायदा ये है कि तुम सीपी करोगे, डेफिनेटली इट्स अ लॉन्गर जर्नी, इट्स अ हार्डर जर्नी, इट्स अ टफर थिंग टू डू। बट उसके साथ ना वेन एवर यू विल सॉल्व अ प्रॉब्लम या तुम अपना कॉन्टेस्ट ग्राफ देखोगे, ठीक है, तो एक किक होती है यार, अंदर से किक मिलती है कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। So that is something that can keep you motivated for a longer while, and eventually you'll start loving the process itself. So it becomes a bit easier to keep on the same path. तो वो एक चीज़ तुम ट्राई कर सकते हो। तो दैट्स वाई आई से कि यार अगर सीपी वगैरह कर रहे हो तो द जर्नी ऑल्सो बिकम्स प्लेजर वर्दी, और फिर उसके बाद काम तो हो ही जाता है उससे भी। मेक सेंस? भाई प्रॉब्लम अभी सिर्फ ये टाइम कंस्ट्रेंट का है ना, अभी आई डोंट हैव दैट मच टाइम, क्योंकि अभी जॉब भी है एंड आफ्टर जॉब करना है, तो फिर भाई सीपी मेरी भी जॉब है यार, थोड़ा सा ऐसे नहीं बोल difficult है। मेरी भी जॉब है नहीं भाई। आप मतलब अभी मैंने स्टार्ट किया है, मतलब कोड ऑल्दो आई वाज गुड इन मैथ्स, मतलब इंजीनियरिंग टाइम पे मैकेनिकल ब्रांच थी, लेकिन अब कोडिंग आई हैव जस्ट स्टार्टेड लाइक 2 3 3 4 मंथ्स अगो, ऐसा है। आई गेट इट, बट तो दैट इज समथिंग यू विल डेफिनेटली हैव टू मैनेज, राइट। उसका कोई हाँ कोई वो तो बंदा भी कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो वो तो तुम्हें खुद मैनेज करना है। बट आई जस्ट से दैट या कीप इन टच विद सीपी एंड स्टफ, मे बी समवेयर डाउन द लाइन यू विल स्टार्ट लविंग इट, एंड व्हेन यू लव समथिंग ना, तो यू टेंड टू मेक टाइम फॉर दैट। तो बाकी मैं तेरे को बोलूँगा ये काम कर दे, यूल से कि टाइम नहीं है यार अभी, बट व्हेन यू लव एक्चुअली लव समथिंग तो यू विल डेफिनेटली गेट टाइम फॉर दैट। कूल। अच्छा, मिनिमम टॉपिक्स आप बता सकते हो क्या, कि मतलब एटलीस्ट इतने सीपी के टॉपिक्स तो कर ले, जैसे कि डीपी तक तो मतलब नॉर्मल डीएसए टॉपिक्स हो ही गए, लेकिन कुछ एडवांस टॉपिक्स देखे थे मैंने, जैसे सीपी के अगर मेरे को कुछ टॉपिक्स छोड़ने हैं, जैसे सेगमेंट ट्रीज और लेजी सेगमेंट ट्री, दे आर मतलब काफी इंपॉर्टेंट है क्या वो नहीं, सेगमेंट ट्रीज तो वाला काम? देख अगर एक्सपर्ट तक जाना है तेरे को, बेसिकली एग्जाम क्लियर करने हैं ना कंपनीज के, तो बिना इनके भी हो जाएंगे। अगर तेरी किस्मत बहुत ही खराब होगी देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम, बट इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज ये बिना उसके भी हो जाएंगे। कूल। मतलब अगर मुझे सिर्फ अगर भाई ये था, नंबर थियरी तो है ही, वो तो मतलब कर सकते हो, वो डिफिकल्ट नहीं होता। गेम थियरी एक टॉपिक मैंने देखा था, गेम थियरी कुछ है मतलब, और डीएसए के साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो मेरे को मतलब कंपलसरी होना चाहिए कि मैं ये करूँ, ये वो सीपी में, ऐसा कुछ बता सकते हो क्या? नहीं यार, ऐसे कंपलसरी टॉपिक्स तो कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ें वो आनी चाहिए, जैसे हीप्स हो गए, मतलब डीपी गुड हो टू गई, गो मतलब आफ्टर डीएसए, मतलब डीएसए से थोड़ा सा ज्यादा कि ये डीएसए में डीएसए इतने इज हैं, गुड लेकिन टू गो यार। उसके बाद जो एडवांस टॉपिक्स तुम बोल रहे हो ना, दैट्स रिक्वायर्ड कि भाई हाँ तुम्हें कैंडिडेट मास्टर लेवल पहुंचना है, मास्टर बनना है, ग्रैंड मास्टर बनना है, उसके लिए रिक्वायर्ड है। मतलब
इफ़ यू जस्ट वांट टू रीच टिल एक्सपर्ट, आई डोंट थिंक एडवांस टॉपिक्स आर एट ऑल रिक्वायर्ड. मैं जब एक्सपर्ट बना था पहली बार, राइट, ऑन कोड फोर्सेस, तो आई हैड नॉट डन एनी ऑफ द एडवांस टॉपिक्स, ऑल्दो मुझे आते थे ट्राइज वगैरह, बट आई नेवर यूज देम इन कोड फोर्सेस, तो उतना रिक्वायर्ड ही नहीं है. कूल ओके भाई, थैंक यू. कूल ब्रो. ब्रो हुज नेक्स्ट? हेलो भैया. अरे हाँ भैया अभी लेट ज्वाइन करा, मेरे को पता नहीं था. क्या सीन हो गया बता. अभी मैंने अभी डिस्कॉर्ड खोला तो देखा हम्म. सेशन चल रहा है. अरे भैया वही वाला कोड फोर्स क्वेश्चन पूछना था, वो वाला एक्सप्लोजन्स वाला. भाई वो करवा दिया मैंने, स्टार्टिंग में वही किया था, फर्स्ट क्वेश्चन वही अरे था, बट भैया. एनीवे मतलब रिकॉर्ड कर रखी है मैंने मीट ये, ठीक है, तो आई अच्छा अच्छा, अपलोड दिस ओके. मीट, तो फिर उसमें पता लग जाएगा, ठीक है. नहीं उसमें मेरे को ये समझ में नहीं आया, जो मतलब एक्सप्लोजन होगा तो मतलब वो चलता जाएगा मतलब या हाँ. रुक जाएगा कहीं, नहीं नहीं जैसे नहीं अगर किसी की हेल्थ ज़्यादा हुई उस एक्सप्लोजन मतलब इफेक्ट से, तो उसको डैमेज करके वहीं रुक जाएगा या वो चलता ही जाएगा नहीं, नेक्स्ट फिर में. वो रुक जाएगा, तो अगर किसी की हेल्थ ज़्यादा हो गई ना तो रुक जाएगा उधर ही. लेकिन मतलब उस एल्गोरिदम के हिसाब से मेरे को, मतलब तुमने जो लिखी थी उसके हिसाब से मेरे को लग नहीं नहीं, रहा था. हाँ वो मैंने क्योंकि वो पूरा वो ढंग मतलब से एक्सप्लेन कर अर्थमेटिक दिया है. प्रोग्रेशन वो चलती जा रही है जीरो तक. हाँ वो इसलिए चलती जा रही है बिकॉज मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि अगर कोई एलिमेंट ज़्यादा है ना तो उसको पहले ही कम कर दे रहा हूँ मैं, तो वो कॉस्ट पहले मैं लिख के रख ले रहा हूँ कि अगर कोई एलिमेंट ज़्यादा है तो व्हाट आई से इसके लेट्स से कोई एलिमेंट 3 है, अब मैं उसकी वैल्यू चाहता हूँ कि 1 होनी चाहिए थी उसकी एलिमेंट, और उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए थी फॉर द एक्सप्लोजन टू कंटिन्यू. तो इन दैट केस आई एक्चुअली इनिशियली डिक्रीज इट बाय 2 यूनिट्स ताकि उसकी वैल्यू 1 हो जाए. समझना थोड़ा कोई नहीं, मुश्किल हो मैंने रहा है. अरे ओके मैंने ओके, कर दिया मैं है, देख लूंगा ठीक है भैया. ठीक ओके ठीक है. स्टिल कोई डाउट रहेगा फिर अगली बार डिस्कस कर लेंगे, बट हो जाना चाहिए उससे क्लियर, ओके. ठीक है. मेरे को पता नहीं था भैया, मैंने आज थोड़ा देखा नहीं, आज थोड़ा बिजी रह गया मतलब कोई इशू नहीं है. कॉलेज. Cool guys, anyone else? सर मेरा प्रोफाइल रिव्यू कर दो. Okay bro. भाई सर पहले टॉप, हाँ ऊपर होगा विवेक, हाँ ये विवेक कुमार तिवारी. सर थोड़ा नीचे, और हाँ ये. got it. सर मतलब अभी ऐसा इशू हो रहा है कि जैसे कि प्रॉब्लम सेट पे मैं जाता हूँ, ठीक है, हम्म. तो सर कुछ कुछ दिन तो ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है. Okay. जैसे कि अभी मैं 1300 के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, हम्म. तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे हैं. फिर कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं कि सर मतलब एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, और फिर मतलब उसको मैं दे देता हूँ 30-40 मिनट. हम्म. फिर अगर नहीं होता है तो फिर मैं एडिटोरियल जाके देखता हूँ, फिर हो जाता है, मतलब फिर क्लिक हो जाता है. अरे बस देख. सर वही, हाँ. बोल. तो सर वही इशू हो रहा है कि एडिटोरियल पे जाके फिर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वैसे खुद से ट्राई करने में मेरा 1 घंटा 2 घंटा ऐसे जा रहा है. तो सर थोड़ा वो हो जाए. देख यार, अभी तूने क्वेश्चंस तो सॉल्व किए हैं ठीक ठाक, तो टोटल क्वेश्चन कितने सॉल्व किए हैं तूने? टोटल क्वेश्चंस ट्राइड इज 446, सॉल्व्ड इज 419, ठीक है. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फाइन, बट ये ग्राफ थोड़ा ठीक नहीं है. तूने ए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व किए हैं, ठीक है. 168 तो मतलब ऐसा मान ले कि 1/3 तो तूने ए ही कर रखे हैं पहले. सो वो फिर वो मतलब कॉन्टेस्ट में भी 800 प्रॉब्लम आ जा रहे हैं, मतलब ऐसे प्रॉब्लम सेट पे मैं 800 अभी नहीं कर रहा मैं. Cool. वो हो गया तो मेरा. अभी कौन सा ट्राई कर रहा है? ये वाला लेवल ट्राई कर रहा है? हाँ अभी मैं 1300 कर अभी रहा देख 1300 पे तूने सिर्फ 30 प्रॉब्लम ट्राई की है, ठीक है. हूँ. एंड व्हाट आई विल से इज कि 1300 पे तूने 30 किए हैं, तेरे 1200 सॉल्व हो रहे हैं, 1200 सॉल्व हो रहे हैं इजीली. हाँ 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 हाँ, यस यस. हो रहे हैं 1200 सॉल्व इजीली. एक ना हाँ थोड़ा, मतलब, एक बार हाँ. करके देखिए थोड़ा 1200 पे ना थोड़ा फोकस करो. और 41 की है ना तूने, एटलीस्ट गो टू लाइक 50-60 पे जा, मतलब 60 प्लस पे जाए इसके लिए 1200 पे, एंड देन प्रोग्रेस टू 1300. I assume अच्छा. that 1300 पे it's never about complicated DSA. Most of the times it would be construction based algorithms, right? और construction based यस यस approaches. यस तो यस यार यस. अभी मैंने अभी किसी और को बता रहा था सेम चीज़, कि जो ये बी प्रॉब्लम्स होती है ना, आई नॉट इवन से 1300 1400, मैं बी प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ. कभी कभी ऐसी आती है कि मुझसे खुद नहीं हो पाती यार. मैं मतलब ए सी डी कर लूंगा, इवन तक ई भी कर लूंगा, और बी रुक जाती है यस कभी कभी. यस. दैट एक्चुअली हैपेंस, ठीक है. तो डोंट टेक दैट टू हार्ड ऑन योर सेल्फ. What I'll say is that instead of wasting 2 hours on a problem, because 1300 प्रॉब्लम है ना, तो इफ़ यू थिंक दैट तुम्हारा लेवल अच्छा है, ठीक है, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट आई एम अ कंप्लीट न्यूबी एंड आई नीड टू सॉल्व इट ऑन माई ओन, देन डेफिनेटली गिव इट 1 or 2 hours. बट इफ़ यू आर एक्चुअली लुकिंग एट अ हायर रेटिंग कि भाई इससे ज़्यादा लेवल पे जाना है, एंड यू आर ऑलरेडी कंसिडरिंग योर सेल्फ बेटर देन दिस, देन व्हाट आई से इज दैट गिव इट 20-40 मिनट्स. अगर 20-30 मिनट में नहीं बन रही अप्रोच ना, और वो बी क्वेश्चन की नहीं बन रही, देन इट्स हाईली लाइकली कि 2 घंटे बाद भी नहीं बनने वाली.
ठीक है। अच्छा। या फिर इसके लिए तो एक स्टैंडर्ड टेस्ट कर सकते हो कि लेट्स से तुम अगले 20 प्रॉब्लम्स के लिए ना एक अपने पास मीटर बना के चलाना, ठीक है। तो व्हेन लाइक एज सून एज यू सी द प्रॉब्लम स्टार्ट अ टाइमर एंड राइट डाउन बिलो कि तुम्हें कितना टाइम लगता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो द सिनेरियोस कुड बी लाइक, एक सेकेंड यार, ओके। तो द सिनेरियो कुड बी लाइक यू स्टार्टेड द प्रॉब्लम, ठीक है। तो तुमने प्रॉब्लम स्टार्ट की ए, ठीक है, इसको लगे मान ले 20 मिनट। फिर तुमने बी स्टार्ट की, ठीक है, इसको लगे तुम्हारे 10 मिनट। फिर सी की, इसको लगे मान ले 3 घंटे लग गए इसको, ठीक है। तो अगर तेरा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा ना, ऐसे वाला कि भाई ये 20 मिनट में सॉल्व हो रही है, ठीक है, एंड द प्रॉब्लम्स दैट यू आर एबल टू सॉल्व इन 4 आवर्स आर दिस मच, ठीक है, या फिर 1 आवर प्लस इज दिस मच, देन दैट बेसिकली मीन्स कि अगर तेरे को प्रॉब्लम आती है करनी ना, तो तेरे वो ऑलमोस्ट 10-15 मिनट में सॉल्व हो जाती है या 20 मिनट में सॉल्व हो जाती है। अगर हाँ। उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है ना तेरे को, तो इट्स नॉट वर्थ गिविंग दैट अमाउंट ऑफ टाइम। बिकॉज अगर तू एक प्रॉब्लम को ना उसके बाद 2 घंटे और देता है, तो 2 घंटे बेसिकली मीन्स तू इस टाइम में 6 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ 20 मिनट्स ईच, राइट। तो इट्स नॉट वर्थ टू गिव इट 2 आवर्स। तो जस्ट सेट अ टाइमर कि भाई मेरे को 20 मिनट में करनी है, होगी तो हो गई, नहीं तो मैं एडिटोरियल देखूंगा। दैट शुड बी योर अप्रोच। एंड वो 20 मिनट्स का फायदा ये भी कि तू अगर 20 मिनट्स फुल कंसंट्रेशन के साथ देगा ना, तो योर कंसंट्रेशन वुड इंक्रीज, द वे यू रीड द क्वेश्चन वुड एक्चुअली इम्प्रूव। तो वो सब इम्प्रूव भी हो हाँ जाएगा। सर, वो भी मैं थोड़ा इशू देख रहा था कि शायद मेरे वो रीडिंग प्रॉब्लम में ही शायद वो थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है कि रीड नहीं कर पा रहा, या फिर वो हो सकता है। और सर मतलब ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ और जैसे कि रॉन्ग टेस्ट केस आ गया, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। अब अगर मैं रॉन्ग टेस्ट केस में जाता हूँ, हम्म, फिर देखता हूँ कि हाँ चलो इसमें रॉन्ग आ रहा है, ठीक तो है। फिर मतलब फिर हो जा रहा है करेक्ट। तो वो भी एक है कि मतलब मैं रॉन्ग टेस्ट केस सीधा देख लेता हूँ, या फिर मेरे को हो सकता है कि पहले नहीं, मैं नहीं देखूँ रॉन्ग टेस्ट, मत थोड़ा देखो। टाइम दूँ। हम्म, हाँ, तो मतलब वो भी है कि थोड़ा टाइम अगर दे सकता हूँ तो दे दूँ। मतलब मैं सीधा रॉन्ग टेस्ट देख लेता हूँ नहीं अगर मत कहीं पे देख, रॉन्ग आंसर आ रहा है तो। मत देख, मैं ये बोलूँगा मत देख। पहले तो देख, प्री टेस्ट हम्म। होते हैं, प्री टेस्ट तो डेफिनेटली बंदा देखता ही है, ठीक है। तो प्री हाँ। टेस्ट में तुम्हारा मोस्टली चीज़ें कवर हो जाती है एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 एज केसेस इफ दे आर देयर, राइट। हम्म। तो उन चीज़ों के लिए आई से मत देख, टेस्ट मत देख। हम्म। बिकॉज एक्चुअल में जब तू कॉन्टेस्ट दे रहा होगा तब तो तेरे को टेस्ट दिखेंगे नहीं उधर, ठीक है, तब तो हिडन होते हैं ना ये। हाँ, वही तो ट्राई इट ऑन योर ओन। थोड़ा उसका भी लैक हो रहा है। हाँ, और जैसे कि सर मतलब यही हो रहा है 1-2 दिन से कि मैं कॉन्टेस्ट भी नहीं दे रहा हूँ, यही सोच के कि मतलब नहीं हो रहा है अगर सॉल्व तो अभी थोड़ा टाइम दे दे, अभी प्रॉब्लम सेट भी थोड़ा कर ले, थोड़ा अपने आप को कर थोड़ा और ब्रशन अप अबे कर प्रॉब्लम नहीं, ऐसा सेट से। कुछ नहीं है यार, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कर। देख हाँ। कॉन्टेस्ट के बारे में अगर तो ये सोचेगा ना कि भाई नहीं हो रहा, कॉन्टेस्ट रेटिंग गिर रही है, गिरने दे, कोई फर्क नहीं हम्म। है। आई हैव सीन एम्पल ऑफ पीपल दैट आर एक्चुअली नाउ मास्टर या फिर इवन ग्रैंड मास्टर्स, जो जब जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो एक्सपर्ट से वो हम्म। वापस स्पेशलिस्ट पे आते थे एंड ऑल दैट स्टफ। हाँ। सो देयर इज दिस हम्म। पर्सन हु इज कॉल्ड डागा, बताता हूँ, एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हम्म। है, ठीक है। मतलब हम्म। मेरे को एक फ्रेंड ने बताया था उसके प्रोफाइल के बारे में, तो हम्म। उसका क्लासमेट था। लेट्स जस्ट गो टू रेटिंग्स, ठीक है। If you started by India, ओके, ये देख हम्म। प्रोफाइल देख इसकी। अब इस बंदा इस हम्म। लेवल पे आके बोलता है कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो रहे, अब मैं पहले कुछ करूंगा फिर करूंगा, ठीक है। तो फर्क नहीं हाँ पड़ता हाँ ना। हाँ। लाइक ही इज द टॉप 6 कोडर्स इन इंडिया राइट नाउ, एंड उसकी प्रोफाइल भी ऐसी थी ओ। ना जैसे हम सबकी होती है। देख रहा है वो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा हम्म। रहा था, फिर ऊपर जा रहा है। तो दिस इज द वे यू विल एक्चुअली हम्म। ग्रो। हम्म। तो डोंट टेक हम्म। इट हार्ड ऑन योरसेल्फ, तो दिस इज बाउंड टू हैपन। हम्म। हाँ, मतलब सर मैं अपसॉल्व तो वैसे करता ही हूँ कॉन्टेस्ट के बाद, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं 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 डीमोटिवेट हो रहा हूँ। नहीं, अपसॉल्व इज अ हुँ। डिफरेंट थिंग। अपसॉल्व हर बंदा कर लेता है, मतलब डेफिनेटली जो अच्छा। मतलब जो चाहते हैं हाँ, ग्रो करना हाँ, वही करते हैं, चीटर्स तो नहीं करेंगे अपसॉल्व। बट द पॉइंट हाँ। इज दैट पीपल आर एक्चुअली कंसर्न कि हमारे डेल्टा गिर जाएगा, रेटिंग गिर जाएगी इफ वी डू अ कंटेस्ट एंड हमें नहीं राइट, होता है। राइट, 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 इट्स नॉट अ प्रॉब्लम राइट, ब्रो, राइट। इट्स बाउंड टू हैपन इफ यू आर गोना ग्रो। तो अप डाउन आते रहेंगे, बट ऑन अ हुँ, लॉन्गर टाइम हुँ, स्केल यू हैव टू ग्रो। लाइक ओवर हियर इज हुँ, गोइंग डाउन हुँ, बट देन इज ग्रोइंग, गोइंग डाउन, ग्रोइंग, गोइंग डाउन, ग्रोइंग, राइट। ये अप डाउन ऐसे ही हुँ, चलेंगे ना, हुँ। तभी तभी यू विल बी एबल टू ग्रो। और सर अपना एक बार कॉन्टेस्ट आप कैसे देते हो? आप पूरा एकदम स्ट्रक्चर बताओगे कि बिफोर कॉन्टेस्ट आपका क्या माइंडसेट रहता है, फिर बीच में आपका क्या माइंडसेट रहता है? यार ऐसा वैसे कुछ अगर नहीं है, देख अभी तो पहली बात मेरे को किसी ने हुँ, यूट्यूब उस पर भी बोला था दैट मेक अ वीडियो ऑन दिस इज, मेरे को नहीं लगता कि आई एम माई सेल्फ कैपेबल इनफ राइट नाउ कि मैं लोगों को बताऊं कि कैसे करना चाहिए कॉन्टेस्ट। बिकॉज मैं खुद भी हुँ, अभी 1750 आसपास हूँ, ठीक है। तो हाँ, हुँ, हुँ, वंस आई गेट टू 2100 प्लस आई विल बी एबल
आई विल बी एट दैट काइंड ऑफ लाइक लेवल वेयर आई कैन एक्चुअली गाइड पीपल. तो मेरा जनरली ये रहता है सिनेरियो, ए खोला, ये सारे खोल के रख लेता हूँ साथ साथ में, ठीक है, जैसे ये खोल के रख लिया, अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा ए अच्छा. देखा, हाँ और ए हाँ. मुझे पता है इसमें मतलब एक चीज़ मेरे दिमाग में क्लियर है दैट इफ आई एम सॉल्विंग ए फॉर div2, तो इसमें मेरे पास डीपी या बाइनरी सर्च ऐसी कोई चीज़ नहीं लगने वाली इसमें मेरी. नहीं नहीं नहीं. दिस हाँ इज समथिंग दैट आई हैव फिक्स्ड इन माई माइंड. तो अगर ऐसी कोई हाँ. अप्रोच दिमाग में आती है उसको निकाल देता हूँ पहले दिमाग से. यस क्वेश्चन यस. देखा तो पहले ये होता है कि यार तुम ना जिब्रिश मत पढ़ो, जैसे ये लिखा अब तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, इतना बड़ा डायग्राम के साथ दे रखा है. हाँ हाँ. लेट मी गिव यू एग्जांपल. ये भी छोटी है स्टेटमेंट, बड़ी स्टेटमेंट नहीं आ रही ना कहीं. हाँ मतलब कुछ कुछ ऐसे हो जाते हैं कि टेस्ट केस से ही पता चल जाता है हाँ कि टेस्ट क्या वो तो करना है अलग कोड. स्टेटमेंट, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा जिब्रिश दी होती है कि भाई ये है वैसा है, ये इसकी माँ है इसकी बहन है, तो हाँ नहीं पढ़ना भाई, मेरे को क्यों उसकी रिश्तेदारी देखनी है, मेरे को बस हाँ. क्वेश्चन करना है. वो तो हाँ वो तो मैंने भी नोटिस किया. तो वो जिब्रिश हटाने का एक तरीका होता है. तो वंस यू नोटिस दैट राइट, तो अभी मैं जिब्रिश हटा पाता हूँ काफ़ी हद तक. डेफिनेटली बहुत एक्सपर्ट नहीं हम्म हूँ उस लेवल पे, बट हाँ काफ़ी हद तक मुझे हम्म पता है कि अगर बहुत सारी लॉन्ग स्टेटमेंट दे रखी है ना, तो आई एक्चुअली रिमूव द फर्स्ट पैराग्राफ और समथिंग. हम्म तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन लर्न, ठीक है. और हम्म उसके बाद एक चीज़ ये रहती है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में ना एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये वाला प्रॉब्लम है ना, इसमें आई कैन एक्चुअली सॉल्व एफ एज वेल. जी नहीं सॉल्व होता मुझसे. एफ इज़ काइंड ऑफ ईजी, आई नॉट से ईजी, बट हाँ बाद में देखा था तो हो रहा था, ठीक है. बट देन आई नो कि ठीक है, मतलब कॉन्टेस्ट के बाद एटलीस्ट जितने मेरे से हो पाए ना क्वेश्चन, उससे +1 या +2 तो करने ही करने हैं. सो अब सॉल्विंग इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. हाँ हाँ वो तो सही. अब हाँ मेरे वो लेवल तो पे मैं भी. इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, बिकॉज अगर मेरे को मान ले एफ या जी सॉल्व करने हैं ना, एफ तो चल हो गया था, हम्म बट इधर सॉल्व हो गया, हम्म मतलब आ गया था इसका लॉजिक. तो बट मान ले को जी सॉल्व करना है, तो आई नॉट फाइंड एनी वीडियो ट्यूटोरियल फॉर दिस. कोई 56 लोगों ने तो सबमिट किया है, ठीक है, तो इसके लिए तो वीडियो ट्यूटोरियल मिलने से रहा. हम्म तो दैट्स अ प्रॉब्लम एट माई लेवल. बट तेरे लेवल पे तो यार आई डोंट थिंक यू विल फाइंड अ प्रॉब्लम, बिकॉज देख इस प्रॉब्लम के लिए सी डी के ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी बनाए थे, ठीक है, हम्म. और ई तो मैंने अभी हाँ एक्सप्लेन मतलब किया. मिल जाते हैं. हाँ एडिटोरियल मिल जाता है, वीडियो भी मिल ही जाता है यूट्यूब पे. हाँ तो वो ठीक है, आप सॉल्व करता रहे. और बाकी हाँ. तो ऐसा कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं होती यार, वी जस्ट ऑल लर्निंग राइट नाउ. अगर हम अभी से फिक्स स्ट्रैटेजी बना के ट्राई करेंगे ना, तो बहुत रिजिड सा पैटर्न हो जाएगा, एंड स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट वुड बी अ बिट लिमिटेड. सो ट्राई डिफरेंट थिंग्स राइट, देन यू विल गेट टू नो दैट व्हाट फिट्स बेस्ट फॉर यू. और सर रिगार्डिंग टॉपिक इशू, जैसे कि मेरा मतलब बाइनरी सर्च वीक है, मतलब वैसा हो जाता है कि बाइनरी सर्च अगर मैं टैग देख लेता हूँ ना, तो मेरे को स्किप करने का रहता है कि अभी इसको रहने दो, अभी बाइनरी सर्च नहीं करना. मतलब ऐसा हो रहा है मेरा बाइनरी सर्च में. गॉट इट. डोंट वरी, संडे को वो है सेशन है बाइनरी सर्च से रिलेटेड ही है, ठीक है. हाँ. तो डू ज्वाइन दैट. आई उसमें हम ये करेंगे कि स्टार्टिंग में आई एक्सप्लेन दैट हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन एक्चुअली बी सॉल्व बाय बाइनरी सर्च, ठीक है. थोड़ा सा जो लोगों का माइंडसेट है बाइनरी सर्च में, उसको थोड़ा सा वाइडन करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज people actually don't know that all of these questions or all of these type of questions can actually be solved by binary search. So I'll try to explain that what all question is solvable, and उसके बाद we'll solve a few questions from code forces and lead code that are based on binary search. तो maybe उसके बाद you'll have ओके a ओके. bit more clarity. तो संडे को करेंगे वो वाला सेशन, ठीक है. Make ठीक sure है you're present ठीक in है that. ठीक है ठीक. Cool bro. ठीक है सर, मैं प्रेजेंट हूँ. ठीक. थैंक यू. Cool. थैंक यू सर. हाँ भाई, who's next? हेलो भैया, अरे मेरा भी थोड़ा एक डाउट था. हाँ भाई बताओ. वो मतलब मैं अभी भैया नया आया हूँ ना कोड फोर्स में. मैंने 3 कॉन्टेस्ट दिए हैं पिछले ही वही. अच्छा. तो उससे पहले मैं लीड कोड पे था. तो लीड कोड पे करता था. तो मेरे को मतलब कोड फोर्स से किस टाइप से प्रैक्टिस करनी चाहिए? यार देख, कोड फोर्स स्पेसिफिक प्रैक्टिस तो वैसे ही होती है कि तो वॉट एवर योर लेवल इज और वॉट एवर टारगेट लेवल इज, लाइक वॉट एवर लेवल मान ले, तेरा लेवल अभी मान ले 1500 रेटिंग है, ठीक है, तो +200 के प्रॉब्लम सॉल्व कर, तो सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ 1700 एंड सॉल्व अ लॉट ऑफ मतलब प्रॉब्लम्स. मेरे को अभी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पता, मतलब किस टाइप से, मतलब कहाँ एक्सप्लोर पूरा मेरे को अभी पता नहीं है कोड फोर्स का. ये खोल दिया कोड फोर्स, ठीक है, एंड इसके बाद जाऊंगा मैं प्रॉब्लम सेट पे, ठीक है. इधर डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल डाल सकता हूँ. लेट्स से मेरे को 1600 से 1800 की प्रॉब्लम्स देखनी है, ठीक है. तो आई राइट ओवर हियर 1600 1800, आई डू अप्लाई, और मेरे को फिर ये प्रॉब्लम दिखाएगा दैट आर इन द रेंज ऑफ दिस 1600 से 1800 के बीच की, ठीक है. तो इसमें एक ऑप्शन रहती है शो टैग्स वाला, तो इसको ना ऑफ कर दियो, ठीक है. ओके ओके. तो इससे बेनिफिट ये रहेगा, जैसे ये ऑन है, ठीक है, तो तुझे ना टैग दिख जाएगा पहले कि ठीक है ये कंस्ट्रक्टिव एल्गो है, या फिर इसमें गेम 3 यूज़ होनी है, इसमें ग्रिडी यूज़ होना है. तो उसकी वजह से ना हमारा जो माइंड होता है वो इतना ना खुल के सोच नहीं पाता प्रॉब्लम के बारे में. वी ऑलरेडी नो कि हाँ ठीक है इसमें बाइनरी सर्च यूज़ होना है, तो इसको ऑफ कर दियो, ठीक है.
यू कैन ऑल्सो हाइड द सॉल्व प्रॉब्लम्स बिकॉज उसको दिखा के कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो हाइड सॉल्व प्रॉब्लम्स कर दियो एंड देन स्टार्ट डूइंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस। अरे ये कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स मैंने मतलब कभी इसी पे फेस करी हैं, कोड फोर्स और कोड सेप पे। तो इनका कैसे प्रैक्टिस करना है, मतलब इनको फिल्टर आउट, इनका भी कुछ है क्या मतलब? यार इसके लिए टैग्स डाल सकता है, ऐड टैग इधर से आता है, ठीक है। तो यू कैन से दैट यू वांट प्रॉब्लम कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम, तो कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम डाल दे, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स, ठीक है। बट आई सजेस्ट कि ऐसा मत करियो, कोई ऐसा करने से देखो पता है कि पहले पता लग जाएगा कंस्ट्रक्टिव एल्गो ही लग रही है इसमें। तो अगेन वो नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा उसे सॉल्व कर लो, आइडिया हाँ लग हाँ जाएगा ना, मतलब चार गेट इट, थोड़ा कुछ कर लो, मतलब 10-15 मतलब उससे, क्योंकि हाँ मैंने इतनी ठीक है। कर रखी नहीं है, ये यहीं पे कर रखी है मैंने तो। नहीं 10-15 तो नहीं लीड ज़्यादा कोड ही में तो करियो, आती नहीं। 10-15 तो नहीं ज़्यादा ही करियो थोड़ी, बट या नहीं, यू वो कैन मतलब बिगर उसके देखिए। हाँ, हाँ ठीक है वैसे कर ले, ठीक है भाई। लग गया बता। ओके भैया, थैंक यू। कूल ब्रो। भाई एक चीज़ पूछनी थी यार। हाँ बता भाई। मेरे यार एनसीएम चल रहे थे 2 हफ्ते से, तो मैंने शायद मतलब काफ़ी कॉन्टेस्ट छोड़े हैं। ओके तो मैं पहले 1300 की प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं मुझे 1000-1100 भी नहीं लग रहे। मैंने वर्चुअल दिया था अभी कुछ टाइम पहले। हाँ होता है भाई तो उतना, मैं वापस क्या कर भैया? होता है भाई उतना, वो सबके साथ ही होता है दैट व्हेन यू स्किप द कंटेस्ट फॉर अ वाइल, तो वो दिमाग में ना काफ़ी कंस्ट्रक्टिव छोड़ी हुई एल्गोस है। बनना कम हो पाँच जाता या है। छः 5 या 6 छूट गए थे, कम से कम 2 हफ्ते के लिए छोड़ी हुई थी। यार 2 हफ्ते से उतना तो मैं तो नहीं वैसे पड़ना चाहिए फ़र्क वैसे। तो मैं क्या करूँ? जैसे मैं 1300 प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं वापस नीचे आ जाऊँ या फिर करता रहूँ उसको? यार एक बार अगर तेरे को देख, मेरे हिसाब से तो 2 हफ्ते के गैप से इतना फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, पहली बात, ठीक है। 2 नहीं 3 ही हो गया होगा मेरे ख्याल, 3 या अरे 4 हफ्ते, 1 महीना हो ही मैंने गया एक होगा। मैंने एक साल छोड़ दिया था, ठीक है। तो मतलब मैंने जनवरी को किया था, फिर दिसंबर में शुरू किया था, तो मुझे लगा था थोड़ा सा फ़र्क इस बात का कि 100-200 लेवल नीचे आ गया हूँ मैं। बट यार 2-3 हफ्ते का गैप तो बहुत मिनिमल सा होता है, उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट स्टिल इफ़ यू आर नहीं, सीइंग दैट। क्योंकि मैंने भी देखी थी ना कि जैसे शॉर्टिंग वगैरह की एल्गो वगैरह होती है 1000-1100 की, मैं कर लेता हूँ मोस्टली। लेकिन अब मुझसे हिली नहीं, देख मतलब अगर नहीं अप्रोच हो तो आ रहा, गई थी, लेकिन अप्रोच गलत आ गई थी। मतलब अप्रोच गलत कर रहा था मैं एक तरह से। हाँ तो अगर नहीं हो सेट रहा तो लगना था डेफिनेटली मैं, कम कर मतलब दे। नीचे आ जाऊँ फिर मैं। हाँ फिर नीचे आ जा भाई, अगर नहीं हो रहे प्रॉब्लम तो पॉइंट ही नहीं है ना। अगर मेरे से मान ले 1100 ही हो रहे हैं और मैं 1300 के बेकार में ट्राई मारे जाऊँ तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का। तो अगर 1100 हो रहे हैं तो मैंने एटलीस्ट फिर 1000-1100 भी काफ़ी कर चुका हूँ मैं, 60-70 कर चुका हूँ मैं। तो और कितने करूँ मैं? या थोड़े से और कर ले एटलीस्ट, एल से अब एटलीस्ट 1200 पे आके ना एक बार ट्राई कर। अगर तेरे 1200 हो रहे हैं ना अब, देन गो टू 1300। अगर तेरे 1200 नहीं हो रहे ना अभी, देन स्टिक टू 1200 फॉर अ वाइल। एंड दिस इज अ लेसन तो लाइक, 1000 बात से स्टार्ट छोड़ियो कर। मत। नहीं 1000 से मत कर स्टार्ट, वो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। 1000 करेगा फिर 1100 फिर 1200। स्टार्ट फ्रॉम 1200, अगर 1200 नहीं होता देन गो टू 1100। कूल। क्योंकि बड़ा बड़ा डिमोटिवेट हो गया ना। मैंने कहा यार 1000-1100 तो लग जाती थी, आज पता नहीं क्या हो गया, 1000-1100 भी नहीं लग रही। अरे और ना इसको क्या थोड़ा सा बात हुई? वाइडर सैंपल पे चलियो। कभी कभी ऐसा होगा कि क्या होता है कि मान ले तूने 1100 वाली प्रॉब्लम स्टार्ट की, ठीक है। तूने 2-3 प्रॉब्लम देखी, वो हम्म जैसे हुई नहीं, फिर तो डिमोटिवेट होकर बैठ हम्म जाएगा। हो सकता है चौथी प्रॉब्लम जैसे हो जाती। तो थोड़ा सा होमोजीनियस सेट हम्म। को बनाने के लिए ना जो सैंपल स्पेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो तो फिर मैं 1000 से चालू करूँ, फिर 1100-1200 उठाऊँ? 1200 से स्टार्ट कर भाई, 1000 से मत करियो, थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1200 का 1000 से 1200, 100 पर। हाँ 1200 का 1200 नहीं होता देन गो टू 1100। कूल। अच्छा अच्छा, ठीक है, 1200 करता हूँ। ठीक है भैया, देखता हूँ कुछ टाइम क्या होता ठीक है ब्रो, कुछ होगा बताइए मुझे, नहीं तो नेक्स्ट आउट नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। और पक्का अपने अपडेट है। दियो हाँ मुझे जी क्या हाँ जी। बनता है, ठीक है। हाँ हाँ, आपसे बातचीत है, वो बी वाले हूँ मैं। फुल भाई। हुज नेक्स्ट ब्रो? केशव की प्रोफाइल देख लो। केशव की प्रोफाइल देखें, फुल देखते हैं। ओके, हियर्स हिज प्रोफाइल। केशव भाई गुड गोइंग, आयल से काफ़ी अच्छा ग्राफ है, बट अभी तक ज़्यादा कुछ सॉल्व किए नहीं है ना प्रॉब्लम्स। ना मैंने बहुत लेट किया था। चलो कोड शेप पे मेरी 1700 आ गई, मतलब कोड शेप पे हाँ 1700 क्लोज आ गई। लीड कोड करा मैंने उससे पहले थोड़ा। अभी लीड कोड पे भी हाँ 8 किया लास्ट के 2 कॉन्टेस्ट में, दो ही तो सॉल्व हुए। कूल इनफ। केशव यू आर मैं कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन टू मी एज वेल। हाँ मेरे को मैंने नाम वो देखा देखा शुरू। लग रहा था ना इसलिए, हाँ नाम देखा देखा लग रहा था मुझे। कूल। हाँ, मैंने वो शुरू में ही भेज दिया था जब आप डाल रहे थे ना उस पे वीडियो। हाँ हाँ। मैं अब सॉल्व तो नहीं था, तो शायद उसी टाइम उस टाइम आपके ज़्यादा कनेक्शन भी नहीं होंगे तो सबका एक्सेप्ट कर ले रहे थे। मैं अभी भी कर लेता हूँ यार, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे को कोई भी मैसेज आता है या रिक्वेस्ट आती है तो एक्सेप्ट दैट। आज सुबह बैठ के वही कर रहा था, आज सुबह के 1000 वो आए हुए थे, रिक्वेस्ट आई हुई थी, एक्सेप्ट कर रहा था सबकी बैठ के। कूल। तो जो आते होंगे तो नहीं करते होंगे, नहीं नहीं यार मैं इसलिए कर मैं लेता हूँ।
या देखो कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है तो प्रोबेबली ही माइट नीड सम हेल्प, राइट? इफ आई एम एबल टू हेल्प तो व्हाई नॉट, तो इसलिए मैं कर लेता हूँ सबकी बैठ के। कूल तो इनफ, मैं चलो। ये देख मैं बता तो तो बन ही जाऊं अभी, यहाँ पे प्रोफाइल अच्छी लगेगी, क्या कह वो रहे भी हैं हो भाई? जाएगा। प्रैक्टिस कैसे करते? मैंने प्रैक्टिस तो कभी नहीं करी कोड फोर्सेस पे, और टेक्निकली मैंने भी कॉन्टेस्ट नहीं भी। करी, पता है, बट आई नो हाउ हम्म? टू डू इट। मैंने भी नहीं की कोड फोर्सेस पे ज़्यादा, बट आई नो हाउ टू डू इट। तो चल ठीक है, बताते हैं अभी। तो ये तूने कुछ अलग सा ग्राफ क्यों बन रहा है तेरा? योर लेवल इज राइट नाउ 900, राइट? और तू प्रॉब्लम तू 1700 वाली मार रहा है या 1500 की मार रहा है। व्हाट आई मैं से वो इज, क्या कह रहा है? मैंने सॉल्व तो करा नहीं, मैंने कॉन्टेस्ट ही देता हूँ बस। कॉन्टेस्ट के बाद जो बी तक तो हो ही जाती है, सी डी उसके बाद लगा लेता हूँ। तो ऐसे रेटिंग के हिसाब से वो करते हैं प्रैक्टिस। हाँ, तो तेरे को क्या करना चाहिए अभी? देखो अभी पिछले वाला देखा था ना, मैंने बताया था प्रॉब्लम सेट पे जाके कैसे फिल्टर आउट करते हैं, देखा था ना वो? हेलो फिर भाई, तेरा नेटवर्क वीक है थोड़ा सा। हाँ, नेटवर्क अच्छा। अच्छा, एक काम करियो, मैंने ना अभी ये रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड तो हो ही रही है ये कॉल, तो इससे पहले जिसका डाउट था ना, आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन कि क्वेश्चंस कैसे फिल्टर आउट करते हैं बेस्ड ऑन रेटिंग्स, ठीक है? आई गेस हिमांशु राज ने पूछा था, तो उसको आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट हाउ यू फिल्टर आउट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ए रेटिंग एंड ट्राई टू सॉल्व देम। तो अभी वीडियो अपलोड करूँगा, तो गो थ्रू दिस वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे करना है। कुल, हेलो हेलो, अब ठीक है? हाँ भाई, अब ठीक है, बताओ। हाँ ठीक है, वो मैंने पीसी भी कनेक्ट कर रखा था ना, इसलिए शायद नेटवर्क हो गया होगा। कूल, ठीक है, मैंने देख रहा था स्ट्रीम, तो मैं देख रहा हूँ शुरू से ही, मैं समझ गया। वैसे वो समझ गया ना? रेटिंग के हिसाब से टॉपिक वाइज करूँ या फिर रेटिंग के हिसाब से? रेटिंग के हिसाब से कर। अब और टॉपिक्स तेरे सारे हाँ, क्लियर हैं ऑलरेडी, मतलब ऐसे बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स या फिर डीपी, ये सब क्लियर है? आप सब मैंने एक बार देख लिया है। अब मेरे को रेटिंग हिसाब से करना चाहिए। मेरे को कौन सी रेटिंग करनी चाहिए? मेरे को स्पेशलिस्ट पे जाना है जल्दी तो। और स्पेशलिस्ट पे जाना है। स्पेशलिस्ट कितने, 1300 से स्टार्ट होता है ना स्पेशलिस्ट? शायद हो, तो मैंने टारगेट देख रखा है। रुक जाओ, मैं अपना ग्राफ देख देता हूँ यार। स्पेशलिस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? ये पीयूपीएल है, ये स्पेशलिस्ट है, ठीक है? तो ये स्टार्ट 14। होता है तो 1400 पे ना, 1500 1600 के आसपास ट्राई करना चाहिए तेरे को। बट देख, डायरेक्टली अगर तू 1600 स्टार्ट करेगा ना करना, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। इट्स हाईली प्रोबेबल कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज अभी तक तूने प्रॉब्लम जो सॉल्व किए हैं वो मैक्सिमम 1100 के आसपास है, ठीक है? तो भाई तू पहले तो 1300 के करने की कोशिश कर, 1300 कर। 1300 में सम क्वेश्चन विल बी एबल टू सॉल्व, बाकी में तेरे को एडिटोरियल देखना पड़ेगा, ठीक है? जब तेरे को 1300 में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए, देन स्किप टू 1500, देन 1600, सो ऑन, ठीक है? ठीक है ठीक है। Cool, bro. Who's next, guys? Hello. हेलो। हाँ भाई। हाँ, मैंने एक डीपी विद बिटमास्क का एक क्वेश्चन पूछा था हैकर अर्थ का, वो कैंसिल हो गया था पिछला डाउट सेशन। भाई लिंक भेज दे और यार। तो टोक्यो मॉड्यूलो नायरोबी टाइप एक में पूछा। अच्छा, हाँ, अरे याद है मेरे को। हैकरथ पे मैं करता ही नहीं, तो एक ही क्वेश्चन किया मैंने हैकरथ पे। यही वाला है ना तेरा? मैंने इसमें डाउट थियरी में भेज दिया। यही है ना क्वेश्चन? हाँ। ओके कूल। देख यार, इसमें सीन क्या है कि तुम्हें ये बताना है कि नैरोबी जीतेगी, ड्रॉ होगा या टोक्यो जीतेगा, ठीक है? हाँ। ठीक है, प्रॉब्लम था कि एक बार वापस देखने दे मेरे को। आवाज़ आ रही है ना क्लियर? हाँ। ओके कूल। ओके 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 ओके, ठीक है। तो देख, प्रॉब्लम ये है कि एक एरे दिया हुआ है, उसमें से तुम कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है सबसे पहले तो, ठीक है? मॉडुलस लेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ, और वो वाला हम चीज़ ऐड कर देंगे अपने स्कोर में। ये प्रॉब्लम है, ठीक है? अब इसको हम देख रिकर्जन से तो कर सकते हैं सॉल्व। तो फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड कि रिकर्जन से कैसे सॉल्व होगा ये। रिकर्जन से ऑब्वियसली टीएलई आएगा, बट बेसिक्स वही है, रिकर्जन इसका बेसिक्स है, उस पर हम मेमोराइज कर सकते हैं बाद में, ठीक है? तो इधर एक बेनिफिशियल चीज़ ये है दैट दे आर सेइंग कि n इज़ लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है? तो अगर n इज़ लेस देन इक्वल टू 20, तो मतलब 20 इंडेक्सेस है मेरे पास। मैं सब इंडेक्सेस को आराम से एक बिटमास्क में स्टोर कर सकता हूँ। बिटमास्क का पता है ना बेसिक्स? ठीक। हाँ हाँ। ठीक है, तो मैंने एक मास्क ले लिया। मास्क में सिर्फ वो इंडेक्सेस रहेंगे जो मैंने ऑलरेडी यूटिलाइज कर ली हैं, इर्रिस्पेक्टिव चाहे वो नैरोबी ने यूज़ किए हैं या टोक्यो ने यूज़ किए हैं, ठीक है?
बिकॉज इफ इंडेक्स इज ऑलरेडी यूज्ड आई कैन नॉट यूज इट अगेन, ऑब्वियस। ठीक है, तो स्टार्ट हम किससे कर रहे हैं? नैरोबी से। किससे करना है स्टार्ट? टोक्यो से करना है, नैरोबी से करना है? ओके, कम कर रहा था स्टार्ट। टोक्यो से। ओके, टोक्यो से करना है स्टार्ट। ठीक है, तो व्हाट आई विल से इज कि फर्स्ट टर्न आ गई टोक्यो की। ना टोक्यो विल से दैट गेम थ्योरी में क्या होता है, रुक, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। गेम थ्योरी का ज़रा भी आइडिया नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं किया पहले। नहीं, गेम थ्योरी के वैसे हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन देखनी पड़ती है, तो ड्राई रन करते हैं तो नहीं कोई नहीं, वैसे पैटर्न नहीं, दिख जाता है, लेकिन पैटर्न्स नहीं इसमें है। डीपी और बिटमास्क भी यूज हो रहा है, इस टाइप के नहीं कर नहीं, रहा। चल डीपी तो छोड़ दे, डीपी तो इज बेसिकली यूज फॉर मेमोराइजेशन, राइट? हाँ एंड बिट मास्किंग इज यूज फॉर सेविंग योर स्पेस, तो ये तो अलग चीज़ है दोनों। ठीक है, बेसिक्स ऑफ रिकर्जन से मैंने गेम थ्योरी नहीं करा। ओके, ठीक है, तो देख क्या होता है, मान ले तो एक स्टेट पे ए पे है, ठीक है? स्टेट का मतलब हाँ समझता है ना, बेसिक दैट यू विल बी हैविंग हाँ सम हाँ लाइक सेट्स ऑफ योर ओन, कि मान ले इसमें एक वेक्टर की एक वैल्यू होगी कोई, या किसी कोई चीज़ों की कुछ वैल्यूज होंगी, राइट? अब ए स्टेट से हम्म यू कैन एक्चुअली मूव टू मल्टीपल स्टेट्स। This can be the state B, C, D, E, right? Based on the action you're going to perform, you can either go to, let's say, B or C or to D or E, right? Now, if from a particular state you get the idea कि इस स्टेट में ना जो दूसरा प्लेयर है वो लूज कर रहा है, राइट? if the state B actually means that the opponent is gonna lose, ठीक है? then it's easier to say that I actually have a way of winning. Make sense? हम्म ठीक है, तो अगर मेरे को एक भी ऐसी स्टेट मिल जाए, स्टेट भी ऐसी एक मिल जाए जिसमें ओपोनेंट हार रहा है, तो आई कैन सिंपली रिटर्न दैट आई हैव अ वे ऑफ विनिंग। ठीक है, हाँ और मेरे को अगर ऐसी कोई भी स्टेट ना मिले तो आई विल से दैट आई हैव अ लूजिंग स्टेट। ठीक है, इसमें एक पॉसिबिलिटी और है दैट तू क्या चाहेगा, कि तू हार जाए, कि तू जीत जाए, या तू ड्रॉ जाए। ऑब्वियसली चाहेगा तो जीत जाए, बट अगर जीतना पॉसिबल नहीं है देन यू विल वांट टू ड्रॉ, राइट? So what you will say is that if all the states are saying loss, or if some of the states is saying a draw, right? So I'll return a draw from my end. लॉजिकल है ना सब, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक्स है, सब लॉजिकल हाँ बात है। हाँ, ठीक ये है, तो ठीक है। बस यही होती है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी का लॉजिक इतना सा है, ठीक है? तो इसमें हम रिकर्जन कैसे यूज़ करते हैं? सो फ्रॉम ए यू विल कॉल द सेम फंक्शन विद सम डिफरेंट वैल्यूज जो तू अपडेट करेगा। दैट्स इट, दिस गोज टू स्टेट बी, और जो ईच फंक्शन होगा ना तेरा, दैट विल रिटर्न इफ इट्स पॉसिबल फॉर द करंट प्लेयर टू विन। सो जैसे तू ए से बी में जाएगा, तो ए से लेट्स से ए में तेरा जो करंट प्लेयर था वो टोक्यो था, राइट? ठीक है, टोक्यो थी, सॉरी। ठीक है, तो टोक्यो का करंट प्लेयर थी, तो एज सुन एज आई गो टू बी, तो द करंट प्लेयर विल एक्चुअली चेंज टू नैरोबी। कूल। So at any instance, my recursive function would return me whether it's possible for the current player to win. Now B would return a 0 if it's not possible for Nairobi to win, right? Over here we are given कि वो win हो सकता है, lose हो सकता है, draw हो सकता है, तो we'll actually have to return 3 values, right? समझ रहा ना? एक for draw हो जाएगा, एक for वो हो जाएगा, win हो जाएगा। Make sense? हाँ चलो अब इसको देखते हैं। तो फर्स्टली व्हाट आई एम सेइंग इज दैट मान ले अगर मेरे एरे में ना सिर्फ एक एलिमेंट बचा हुआ है, कितना एलिमेंट बचा हुआ है? सिर्फ एक एलिमेंट बचा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक। कुछ आइडिया है? सिर्फ एक एलिमेंट बचा है तो अपना वो जीत जाएगा, टोक्यो जो फर्स्ट मूव कर रहा है। क्यों? देख, हेलो। इसमें जो रिटर्न करूँगा ना मैं, आई एम एक्चुअली रिटर्निंग द स्कोर ओवर हियर। तो मेरा जो फंक्शन है ना, दिस रिटर्न्स द स्कोर। ठीक है, तो व्हाट आई विल से इज कि मान लिया अगर मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट है ना, तो स्कोर इज 0। एक ही एलिमेंट बचा हुआ है, उसको मैं ऐड करके उसको डिवाइड कर दूंगा उसी एलिमेंट से, तो मेरा स्कोर तो 0 आने वाला है, राइट? कॉमन सेंस ना, मेरे पास मान ले सिर्फ ये एरे बचा हुआ है मेरे पास, मान ले 0 0 0, मेरे सारे एलिमेंट्स यूज हो गए, सिर्फ 2 बचा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको सम मॉडुलर कर रिटर्न दूंगा। करता हाँ, मॉडुलर रिटर्न कर रहा है, 2 mod 2 रिटर्न कर दूंगा, आंसर तो 0 हाँ, आने ठीक वाला है। है। तो जब मेरा एक एलिमेंट बचा है, इंटरपोलेटर। जब मेरा एक एलिमेंट बचा है तो मैं रिटर्न करूंगा 0 सीधे सीधे। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर। अब इसका मतलब पता है तेरे को बिट मास्क कैसे क्यों ले रहे हैं वैसे? हाँ, तो ये नंबर ऑफ बिट्स काउंट कर देता हाँ, है। नंबर ऑफ built-in इंडिसेस I've already used. If the number of indices I've already used is equal to the total number of indices available minus 1, तो बस बेसिकली एक इंडेक्स बचा है मेरे पास। उस केस में तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो करंट वो है ना, मतलब करंट प्लेयर है,
दैट कैन एट मैक्स गेट अ स्कोर ऑफ 0 इस इंडेक्स से, तो इसके आगे मैं 0 ही ले सकता हूँ. वट एवर ऑपरेशन ही परफॉर्म्स इज गोना गेट अ स्कोर ऑफ 0 इटसेल्फ. कूल. अगर ये वाला केस नहीं है तो व्हाट आई से इज कि n ले लेता हूँ. n इज द नंबर ऑफ इंडिसेस और द टोटल नंबर ऑफ इंडिसेस एंड आई टेक अ रिजल्ट. अब रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट दिस प्लेयर कैन गेट. नाउ आई एम सेइंग कि अगर मैं करंट प्लेयर ए हूँ ना, तो जितना मेरा स्कोर बनेगा आई टेक दैट एज पॉजिटिव. ठीक है. और जो अगले का स्कोर बनेगा ना, अब जब बी खेलेगा उसका भी कोई स्कोर बनेगा, वो भी मेरे को रिटर्न करेगा. तो दिस फंक्शन इज गोना रिटर्न मी. अभी ए के लिए तो ए का स्कोर रिटर्न करेगा. व्हेन आई गो फॉर बी, तो ये बी का स्कोर रिटर्न करेगा. ठीक है. तो व्हेन आई एम गोना कॉल इट अगेन, आई एम ए, एंड व्हेन आई एम गोना कॉल इट, सो इट्स गोना रिटर्न मी द स्कोर फॉर बी, राइट? ठीक है. तो आई एम गोना माइनस दैट स्कोर. मेक सेंस? एक बार ये लाइन फिर से समझा. ओके, देख. करंट प्लेयर कौन सा है? ए. ठीक है. हाँ ए. करंट ए है मेरे पास. ओके. अब मैं जब रिकर्सिव फिर से कॉल करूँगा फंक्शन, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब हम फिर से रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे तो इट वुड बी रिटर्निंग अस द स्कोर फॉर बी. ऑब्वियस है. ठीक है. अब मैं ए से जब कॉल करूँगा इस फंक्शन को, या फिर जब मैं मान लें नायरोबी से कॉल करूँगा इस फंक्शन को, ठीक है, फिर से, तो इट विल एज्यूम दैट द करंट प्लेयर इज नाउ गोना बी टोक्यो. ठीक है. तो द करंट नेक्स्ट वुड बी टोक्यो. तो वट एवर वैल्यू, सो दिस फंक्शन इज सपोज टू रिटर्न मी द वैल्यू और द सम दैट द पर्टिकुलर प्लेयर कैन ऑब्टेन, राइट? तो ये जो भी वैल्यू मेरे को रिटर्न करेगा ना फंक्शन, दैट एक्चुअली वुड बी द स्कोर फॉर टोक्यो, राइट? कूल. सेकंड प्लेयर का स्कोर. हाँ, सेकंड प्लेयर का स्कोर रिटर्न करेगा. तो उसको मैं माइनस ही करूँगा अपने में से. मेरे को ये देखना ना कि मेरा स्कोर ज़्यादा है कि उसका स्कोर ज़्यादा है, तो मैं उसको माइनस करूँगा ना अपने में से. ठीक है. मेरा स्कोर 10 आ रहा था, दूसरा 20 स्कोर कर पा रहा था, दूसरा मेरे से ज़्यादा स्कोर कर पा रहा है. नाउ आई वांट टू चेक कि मेरा ज़्यादा स्कोर है उसका ज़्यादा स्कोर है. तो आई कैन इजीली सब्ट्रैक्ट इट. मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा. अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो उसका ज़्यादा स्कोर है, अगर पॉजिटिव आ गई तो मेरा ज़्यादा स्कोर है. 0 आ गई, दोनों इक्वल है. हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो. Guys, am I audible? Yeah, you are audible. Okay. So bro, probably तेरे Hello. connection में issue है कुछ. हाँ भाई, तेरे कनेक्शन में इशू है कुछ में भी. वैभव, are you am I audible? हेलो. हाँ भाई, am I audible? Cool, let's wait for someone else to ask his doubt. फिर इसको बाद में क्लियर कराता हूँ. हाँ भाई, anyone else? यस भैया. हाँ अब भाई, प्रोफाइल चेक करना तो. प्रोफाइल. ओके भाई, क्या हो रहा है प्रोफाइल के साथ? डाउन क्यों जा रही है इतनी? हाँ, वही नहीं समझ में आ रहा है. वो मेंशन दिया, उसके बाद कॉन्टेस्ट देने बैठा था तो प्रॉब्लम ही नहीं हुआ था. ओके, लेट्स चेक योर प्रोफाइल. जो स्पेशलिस्ट पे रीच करना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मैं वही बता. देख रहा हूँ ब्रो, एक सेकंड. यार ये प्रॉब्लम है, देख. तेरे से ए भी नहीं हो रहा अब सॉल्व. कभी नहीं होते हैं. ए सॉल्व हो रहे हैं कि ए नहीं हो रहे अब? हाँ, होते हैं कभी कभी, नहीं भी बनता है. अभी ये पिछले बार से, मतलब कौन से टाइम है ये, जुलाई 10th से ए प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे जुलाई 10th के बाद से? बिकॉज तेरी रीडिंग हाँ, कंसिस्टेंटली होते डाउन हैं. जा रही है ना. हो रहे हैं सॉल्व बीच बीच में. हाँ, यार एक तो ना तूने एक प्रॉब्लम ये कर रखी है, तूने 800 की प्रॉब्लम सॉल्व की है मैक्सिमम. 900 1000 नहीं जा रहा. नाउ ए प्रॉब्लम कुड एक्चुअली भी 900 वर्थ प्रॉब्लम, राइट? 900 पॉइंट्स वाली हो सकती है. इनको सॉल्व कर एटलीस्ट. ओके. ठीक है. मतलब हाँ, 1000 तक के सॉल्व करो. 1000 तक कर ले. हाँ, इफ़ यू कैन डू दैट टू डू दैट. 800 के प्रॉब्लम्स तू ट्राई करता है जैसे, तो यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आफ्टर द कंटेस्ट इटसेल्फ, राइट? तो एक जनरली टेस्टिंग करता है ना तू. हाँ. है ना? तो उसमें इफ़ यू आर नॉट एबल, आर यू एबल टू सॉल्व द 800 लेवल प्रॉब्लम एवरी टाइम? लेट्स से मैं तेरे को रैंडम से कोई प्रॉब्लम दे दूँ ऑफ लेवल 800, आर यू एबल टू सॉल्व इट? हो जा रही है आराम से? कभी हाँ, मोस्टली बन जाती है, कभी नहीं भी बनती है. जैसे मैथ्स का आता है ना तो नहीं बन पाता है.
तो भाई देख, जो नहीं बन रहा उसको सीखने की कोशिश कर, ठीक है। और अगर ये मोस्टली बन रहा है, मान ले 90% टाइम्स बन रहा है तेरा ए, ठीक है, हाँ मतलब हाँ 800 वाली प्रॉब्लम 90% टाइम्स बन रही है, देन स्टार्ट डूइंग प्रॉब्लम्स ऑफ हाँ 1000 एंड 900, ठीक है। तभी तो वो ग्रोथ देखने को मिलेगी, उसके बिना ग्रोथ नहीं मिलेगी। और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आता तो आस्क इन द ग्रुप। ओके, नेक्स्ट टाइम से अभी पूछ लेता जाऊंगा। कूल ब्रो, हाँ, थैंक यू भाई। कूल भाई। हेलो, भाई हाँ भाई, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। ओके नो प्रॉब्लम। ओके सो गोइंग बैक टू योर डाउट, इतना समझ आ गया था कि नेक्स्ट वाला रिटर्न करेगा मेरे को कुछ वैल्यू, हाँ राइट? हाँ हाँ, ठीक है। सो आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट द ए, वैल्यूज। अगर मतलब ए ने अगर कॉल किया है रिकर्जन को तो वो बी का स्कोर देगा। ऑब्वियसली, ठीक है। तो ए बोलेगा दैट आई वांटेड टू चेक फॉर ऑल द एलिमेंट्स, नाउ आई वांट टू चेक कि ए मेरा 0th एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता है या फिर मेरा कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता है, ए जो है, राइट? तो उसका स्कोर जो आएगा वो आएगा सम मॉडुलस ए आई, राइट? इतना समझ आ रहा है ना? देखो सम है मेरे पास ऑलरेडी, हाँ हाँ उसमें से ए आई, उसका मॉडुलस लूंगा मैं विद ए आई, राइट? एंड देन आई एम गोना कॉल द सेम रिकर्सिव फंक्शन विद अ डिफरेंट स्टेट। नाउ व्हाट वुड बी द स्टेट ओवर दैट? फर्स्टली मेरे को बिट मास्किंग यूज करके बताना पड़ेगा दैट करंट एलिमेंट इज सेट एक्चुअली, राइट? और द करंट इंडेक्स हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड। तो उसके लिए आई से मास्क और आई एम सेटिंग द करंट बिट, ठीक है। और जब सम ठीक होगा, है। द सम ऑफ द एरे दैट वुड एक्चुअली गेट डिक्रीमेंटेड बाय ए ऑफ आई। इतना ऑब्वियस है कि जो करंट एलिमेंट तुम यूज कर रहे हो उसको तुम वैल्यू 0 कर दे रहे हो। बस ये मेरे को करना है। और एज आई टोल्ड यू दैट आई वांट टू प्ले ऑप्टिमली, राइट? तो इफ ए इज एबल टू गो टू ऑल ऑफ दीज स्टेट्स, लेट्स से, मतलब मैं जैसे छः इंडेसेस यूज कर सकता था, राइट? और फॉर दिस 6 इंडेसेस आई एम गेटिंग डिफरेंट स्कोर्स। सो सिंस आई वांट टू प्ले ऑप्टिमली, तो आई वांट द मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल, राइट? तो आई विल ऑलवेज सेव द मैक्सिमम स्कोर आई एम गेटिंग। कूल इनफ? ओके। इसके बाद अब मान ले तो ऐसे चलाता रहेगा तो ये दे देगा TLE तेरे को, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, अब रिकर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हमें देखना होता है कि जो स्टेट है वो कैसे डिफाइन हो रही है। नाउ फॉर मी टू डिफाइन अ स्टेट, मास्क इटसेल्फ इज सफिशिएंट, राइट? मास्क से मैं स्टेट डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मास्क को मैंने DP में बना दिया है। तो फॉर एनी रिकर्सिव कॉल आई चेक कि अगर उस मास्क के लिए पहले से आई हैव अ वैल्यू सेट, तो -1 इज द डिफॉल्ट वैल्यू, राइट? तो इफ इट्स नॉट -1 दैट मीन्स इट हैज ऑलरेडी बीन सेट। In that case, I'll return it. Cool. तो मास बस एक तरह से विजिटेड एरे का काम कर रहा है कि मतलब कौन कौन से विजिट कर लिए। हाँ, एग्जैक्टली वही काम कर रहा है बेसिकली। मास्क में वही है ना कि तेरे जैसे मान ले तेरे पास जो इंडिसेस विजिट कर रखे हैं उनके लिए द बिट हैज़ बीन सेट टू 1, जो नहीं है उनके लिए बिट इज़ 0। तो बस उस पर एक DP मास्क लगा दिया। अब तू करने को क्या कर सकता था कि तू पूरे के पूरे एरे पे ना DP मास्क लगा सकता था, ठीक है। बट होता क्या है कि उसमें फिर मेरे को हर एक एलिमेंट चेक करना पड़ेगा। दिस इज मच मोर फास्टर देन दैट। समझ में आ गया। समझ गया ना? मतलब तो ऐसे करता ना कि मैप ऑफ वेक्टर इंट, ठीक है, बूल, हाँ और फिर इसको DP बनाता, ठीक है, और फिर DP में एक्चुअली इस एरे A को देता तू। तो दैट हाँ, वुड इसमें आल्सो कभी हैव कभी बीन वैलिड। TLE भी आ जाती है। TLE ही आएगा इस केस में। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि यार ऐसे ही कर लो जब इजी सा वे अवेलेबल है, ठीक है ना? ठीक है। कूल इनफ? हाँ, क्लियर हो। कूल भाई। चलो गाइस, एनीवन एल्स? थोड़ा प्रोफाइल देखिए थोड़ा। गौरव भाई प्रोफाइल खोल दी आपकी। IIT BHU? IIT भुवनेश्वर। हाँ, अच्छा वाराणसी, भुवनेश्वर, सॉरी। कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? भैया वो C वाला कभी नहीं हो रहा है कभी नहीं कॉन्टेस्ट हो में। रहा है। चलते ही प्रोफाइल देखते हैं। नहीं मतलब डीप 2 का नहीं हो रहा है वो वाला। हाँ, डिप 3 का तो हो ही जाएगा ऑब्वियस है, वो तेरी प्रोफाइल से समझ आ रहा है। बट व्हाट आई एम वंडरिंग इज कि तू अभी तक फिर इसमें क्यों नहीं आया, मतलब न्यूबी में क्यों, मतलब ओके वेट अ सेकंड, ये तो मेरी है ये प्रोफाइल ना। तो व्हाट आई एम वंडरिंग इज कि तू न्यूबी में क्यों नहीं पहुंचा अभी तक, सॉरी प्यूपिल में क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? प्यूपिल तो एटलीस्ट पहुंचना चाहिए था। सो व्हाई हैवंट यू रीच्ड प्यूपिल येट? लेट्स ओपन अ कंटेस्ट ऑफ योर्स, ठीक है। अभी रिसेंट वाला कंटेस्ट तो ठीक हुआ है, उसके पहले का लेट्स से ये वाला कंटेस्ट एक एवरेज कंटेस्ट था ना तेरा, इसमें भी +55 है। लेट्स से ये वाला कंटेस्ट खोल के देखते हैं, सबमिशंस देख लेता हूँ। ओके, तूने ए किया, ठीक है, और तूने ये किया। स्टार्ट कितना टाइम पे हुआ था ये?
भाई मेरे को ऐसे खुद बता दे, मैं चेक कर रहा हूँ उससे पहले अपना खुद बता दे कि क्वेश्चन जो होता है ए कितने टाइम में हो जाता है तेरे से? तो मेरा लास्ट कॉन्टेस्ट जो हुआ था, मतलब एक क्वेश्चन हो जाता है नॉर्मली 8-15 के अराउंड। हम्म। और बी वाला, सपोज बी, अगर कभी कभी बी अगर बहुत हार्ड हो गया तो 8:40 में होगा, नहीं तो वही 8:30, 35, 40 उसी अराउंड। यार तेरी प्रॉब्लम पता क्या फंस रही है मेरे हिसाब से, तेरे को ना चीटर्स हरा रहे हैं। जो चीटर्स होते हैं ना टेलीग्राम वाले, वो क्या करते हैं कि वो लीक कर देते हैं सोल्यूशन जल्दी से, ठीक है, और एज सुन एज द सोल्यूशन गेट्स लीक्ड तो वो सारे लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं सोल्यूशन को, तो उसकी वजह से दोज पीपल आर गेटिंग अहेड ऑफ यू। अब देख तेरे पास दो रास्ते, या तो डिप्रेस हो जाए इस बात से, कोडिंग करना बंद कर दे, फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। द अदर वे इज़ कि भाई कंटिन्यू रख अपनी जर्नी, बिकॉज द पीपल हु आर एक्चुअली चीटिंग दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, राइट? ऑन द अदर हैंड यू आर एक्चुअली लर्निंग समथिंग, तो ग्रेजुअली विद टाइम यू आर गोना गेट अहेड ऑफ देम। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, बट एक चीज़ अगर मैं बोलूँ इधर, एक सेकेंड दियो। ओके सो देख ये प्रॉब्लम है तेरे पास, तेरी रेटिंग ऑलरेडी 1170 है, ठीक है, और तू 1100 वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तेरे को 1300 या 1400 हिट मारनी चाहिए, वो नहीं कर रहा तो दिस इज अ प्रॉब्लम भैया एक्चुअली। एक्चुअल चीज है कि मतलब मैं नॉर्मली अभी 1000 से लेकर 1200 तक का कर रहा था। हम्म। और अभी तो हम लोग का मतलब क्या सेमेस्टर शुरू हो गया था, तो 1300 शुरू किया था जस्ट अभी अच्छा करना। हाँ हाँ ठीक है, 1300 इसको कर, ऐसा टाइप। इसको कर, मतलब 1300 वाला कर, ठीक है, इसको ढंग से करेगा तो तेरा सी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं बोलूँगा ये 1600 वाला पे फोकस मत कर, करना है कर ले, बट ये उतना वो रिक्वायर्ड नहीं है। 1600 में वो क्वेश्चन मतलब एक कॉन्टेस्ट में था, तो उसको खाली अब सॉल्व कर रहा था तो हो गया था, इसलिए वो अच्छा 1600 का ठीक है, था। कूल, तो मतलब इस वाले रेंज पे ना फोकस का थोड़ा सा होने लग जाएगा सी। आई एक्सपेक्ट यू अच्छा। टू बी एटलीस्ट लाइक प्यूपिल, तो प्यूपिल हो जाएगा यार, मतलब तू नेक्स्ट एक दो कंटेस्ट में प्यूपिल हो जाएगा तो ऑब्वियसली, ठीक है, 30 ही चाहिए और उतना कर लेगा तू। बट आई एक्सपेक्ट ठीक यू है। टू बी इन द स्पेशलिस्ट रेंज विद इन अ मंथ, लेट्स सी, ठीक है, आई ठीक कीप है अ भाई। टैब्स ऑन इट, लेट मी नो एज सुन एज यू बिकम अ स्पेशलिस्ट, तो मेरे को पिंग करियो। कूल ठीक है भाई। कूल भाई। हाँ भाई। तो भैया हाँ भैया पूछना था कि मैंने सीपी स्टार्ट करी है जस्ट अभी। मैंने मतलब डीएसए तो अपनी कंप्लीट कर ली थी बट सीपी अभी स्टार्ट करी है, तो पूछना था आपसे कि कोड फोर्सेस पे अभी कॉन्टेस्ट देने स्टार्ट करे तो मतलब अभी तो डिव 2 में केवल ए ही हो पाता है। एक बार बी हुआ था उसके बाद नहीं हुआ बी भी, मतलब ए ही हो पा रहा है सिर्फ अभी फिलहाल। सी खोल के देखा कभी? क्या भैया? सी खोल के देखा कभी? हाँ सी हो बट रहा है? मतलब ये है कि सी नहीं हो पाता ना भैया, मतलब ए हो जाता है और ज़्यादा टाइम लगता है। बी मतलब बी में ये होता है कि जैसे अगर ए 8:30 मतलब 8:05 में स्टार्ट हुआ तो 8:30 या 8:35 तक ए हो रहा है, देन उसके बाद अगर बी पे आता तो बी को करने में 1 घंटा लग जाता है। ओके गॉट इट। भाई एक काम कर, प्रोफाइल शेयर कर दे अपनी एटलीस्ट, तभी कुछ देख पाऊंगा ना। एक सेकंड। भाई अपना वही बता दे, यूजर ने बता दे, मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ। मुदगल 2001 मुदगल मुदगल 2001। अंडरस्कोर अंडरस्कोर हाँ 2001, अंडरस्कोर 2001 यही है ना? तो हाँ हाँ भैया। कूल इनफ। तो तो अभी क्या ये अभी क्या रेटिंग चल बंद रही है कर तेरी? दिया था होने पे। ओके, हीट मैप तेरा तूने पहले किया था मतलब 2 दिन, फिर तूने बंद कर दिया, राइट? मतलब वो मतलब हाँ हम्म। समझ ही नहीं आया, वो फिर डीएस से दोबारा स्टार्ट कर दी, हो नहीं रही थी प्रॉब्लम इस पे सॉल्व। तो डीएससी लीड तूने कोड पे किया सॉल्व तो करने लीड कोड किया होगा ऑब्वियसली, राइट? लीड कोड पे करा है हाँ भैया। लीड कोड प्रोफाइल क्या है तेरी? हाँ लीड कोड भी मुदगल 2001 है। अंडरस्कोर है? केवल मुदगल 2001। ओके भाई ये नाराज क्यों हो गया कुछ? ये बोल रहा है वेबसाइट तेरा है ही नहीं नाम। एक सेकंड मैं चेक करता हूँ तो एक सेकंड में। कूल। ओ सॉरी भैया इसमें एक सेकंड में यश मुदगल। हाँ एक सेकंड भैया, यश मुदगल है और प्रेप लिखा हुआ है मुदगल के बाद देन 2001 है। प्रेप? 2000 प्रेप 2001 हाँ। इतना बड़ा नाम कौन लिखता है यार? अभी नहीं और आ रहा क्या? नहीं नहीं, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक टाइप हो गया था। खुल गया। ये कुत्ता तूने पाल रखा है बाहर का है? नहीं मैं नहीं हमारे ये मेरे पास कौन सा है? इन ये तो वैसी है भैया हिंदी।
अच्छा इंडी है, कूल। अच्छा देख तो मतलब इसमें तो वर्चुअल देता हूँ भैया, मतलब हो जाते हैं 3 क्वेश्चन तक तो हो जाते हैं मतलब। हाँ, ओके। फोर्थ वाला तो नहीं होता, बट वो है कि थर्ड तक हो जाते हैं इसमें। कई बार होता है कि थोड़ा बहुत कट होने लगे हैं अब यार मतलब तूने इसमें सिर्फ तो। नो कंटेस्ट दिए हैं, इधर भी देख एक चीज प्रॉब्लम ये देख, तूने सिर्फ नो कंटेस्ट दिए हैं, ठीक है। हाँ भैया, और देख ये वाली गलती मत क्या कर, इससे ना रेटिंग बहुत गिरती है। तूने प्रोबेबली कंटेस्ट मुझे रजिस्टर किया पता होगा, फिर नहीं उठा थी ही नहीं भैया, होगा। मेरे को मैंने रजिस्टर कर दिया वो कॉन्टेस्ट, मुझे पता नहीं थी कि अगर देते हैं तो रैंक मतलब गिर जाती है। हाँ तो ध्यान रखे, मतलब ऐसे ऐसी गलतियाँ नहीं करी हो। ये इसमें एक हुआ था, ये मतलब गलती से हुआ था एक कि ये कैसे। ये भैया ये शायद मैं हॉस्टल में था उस टाइम पे, छोड़ के चला गया था कॉन्टेस्ट। चल कोई नहीं, इतना कोई सीन नहीं है वैसे। हाँ ठीक है, तो एक हाँ काम तो कर। मतलब, बोल। हाँ भैया बताओ आप कैसे यार व्हाट करना आई है से कि देख मतलब तेरी प्रोफाइल या तेरी कंसिस्टेंसी तो सही है, ठीक है। यू हैव बिन कोडिंग मच मोर देन मी, आई विल से, ठीक है। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई एम एबल टू सी इज अ बिट लेस। ऑन टॉप ऑफ दैट लेट्स सी द काइंड्स ऑफ टॉपिक्स यू हैव एक्चुअली सॉल्व्ड, ठीक है। तो बाइनरी सर्च 36 है, लिंक्ड लिस्ट की हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस, एरे के 202 क्वेश्चंस, दैट्स फाइन। सॉर्टिंग के अगेन 40 क्वेश्चंस, फॉर मैट्रिक्स यू हैव 36, BFS is 54, DFS is 65. Where's the DP? DP is 78 is also fine. Backtracking is also fine. Union find is fine. Monotonic stack के थोड़े से और कर ले, ठीक है। सेगमेंट्री के तूने 6 क्वेश्चन कर रखे हैं। I'll say not required, कर रही है तो बढ़िया चीज़ है, बट wasn't required at this level at least. ट्राई के तूने 4 की हैं, cool. बाइंड इंडेक्स ट्री, ये मतलब सेगमेंट्री वाले ही होंगे ना, आई गेस 2 टैग्स मिले होंगे इनको। ओके, कौन से टॉपिक्स तू मिक्स कर रहा है? मैक्सिप के क्वेश्चंस नहीं किए तूने? मैक्सी को करे हैं भैया। प्रायोरिटी क्यों दिख रहा है मेरे को कहीं? तेरे को दिख रहा है कहीं? नहीं तो करे हैं भैया, प्रैक्टिस क्वेश्चन करके। कुड भी देन, मतलब हो सकता है कुछ दिक्कत हो इसमें, किस और टैग के साथ आ रहा हो। हाँ वो हो सकता है भैया, करें क्योंकि प्रायोरिटी कैसे भैया। यार देख तूने ना, एक चीज़ बोलूँगा कि तूने क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे किए हैं, ठीक है। बट इधर टोटल 389 है, बट थोड़े से हार्ड क्वेश्चन ना कम है। तूने इजी पे फोकस किया है। अब इतने क्वेश्चंस करने के बाद आई अज्यूम कि तेरे को इजी क्वेश्चंस ऐसे मजाक लगते होंगे, इजी खोला समझ आ जाता होगा कैसे करना हाँ है। वो तो फटाफट हो जाते हैं हाँ भैया। हाँ स्टॉप डूइंग इजी क्वेश्चंस, हाँ कभी कभार कर लिए, स्टार्ट डूइंग हार्ड वंस। इस चीज़ से मैंने अपनी काफ़ी ग्रोथ देखी थी, बिकॉज एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मेरे लिए ना मीडियम क्वेश्चंस ऐसे हो गए थे कि मीडियम खोला तो हो ही जाएगा, 95% ऑफ द टाइम मीडियम तो हो ही जाएगा खोल के, ठीक है। बट हार्ड पे अटकता था मैं कभी कभी। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज कि लेट्स से मान ले मेरे को मीडियम में लग रहा है 10 मिनट, ठीक है। तो मैं बहुत खुश होता था कि मैंने आधे घंटा बैठा, यार 10 मिनट भी नहीं लगते वैसे, मेरे को 5 मिनट लगते हैं मीडियम क्वेश्चन में, ठीक है, ऑन एवरेज। तो मान ले मैं आधा घंटा बैठा हूँ, वैसे 6 क्वेश्चन हो गए या 5 क्वेश्चन हो गए मीडियम के, तो आई एम प्रीटी हैप्पी, द एड्रेनलिन इज ऑल गुड एंड स्टफ। But the point is that the amount of growth I'll have if I try a hard question would actually be greater than the amount of growth by doing medium questions. Even if I'm doing a single hard questions versus I'm doing 5 or 6 medium level questions. That makes sense, right? Because hard question में multiple concepts would be utilized और उतना ही hard होगा तो I'll definitely be learning more things. So make a point of that. That from now on तेरे को daily के 2 hard questions करने हैं, ठीक है? ठीक है भैया। Daily के 2 hard questions. कर लेगा? ठीक है भैया। हाँ भैया कर लूँगा। कुल 2 हार्ड क्वेश्चन रहेगा, करियो, मेरे को अपडेट देते रहिए। कुछ दिक्कत आती है, कुछ डाउट होगा तो पूछो ग्रुप पे, बट ऑलवेज डू 2 हार्ड क्वेश्चन फ्रॉम लीड कोड ऑन डेली बेसिस। और मीडियम जब मन करे उठा लिया, कोई कर दिया, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन बड़ा 100 हो जाएंगे ना जब इधर, देन विल हैव अ गुड डिस्कशन अबाउट इट। गोइंग बैक टू योर प्रोफाइल ऑफ CF, तेरी रैंकिंग कितनी है अभी? अभी तो शायद 925 या 930 का राउंड है कुछ भैया। अच्छा देख 935 के राउंड है, तो ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दे CF पे। दिन के 1-2 प्रॉब्लम्स 1200 से 1100 की रेंज के बीच में, ठीक है। ठीक है भैया। एंड फिर एक काम करते हैं, एक हफ्ता कर, नेक्स्ट वीक मेरे को अपडेट दे दियो भाई, जो होता है। कुछ डाउट वगैरह आएंगे तो विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज दैट टू बेट। कूल, ठीक है फिर 1200 से 1100 रेंज के करूँ मतलब उस पर। हाँ 1100-1200 में ट्राई कर। अगर तेरे अभी 900 के आसपास है ना, तो इसी रेंज पे ट्राई कर अभी,
इससे ज़्यादा बढ़ने, अब ठीक है 1800 भैया, करने की कोशिश करेगा तो फ़ायदा नहीं है, इस रेंज पे ट्राई कर एटलीस्ट। ठीक है, कूल। ठीक है ओके भैया, ब्रो। 2-3 प्रॉब्लम करूँ मतलब। नहीं, 2-3 प्रॉब्लम दिन की कर, टोटल 2-3 नहीं करनी, एटलीस्ट 2-3 हाँ, प्रॉब्लम हाँ, दिन की मतलब कर। हाँ, हाँ हाँ हाँ। ठीक है भैया, ठीक है भैया। कूल ब्रो। ओके भैया, थैंक यू। कूल भाई। एनीवन एल्स? हेलो भैया। हाँ भाई, भैया एक प्रोफाइल रिव्यू कर दो ना। कर देते हैं भाई। कहाँ पे गया आपकी मोबाइल? अंचित। जैसे कि भैया मैं ज़्यादातर कॉन्टेस्ट ही देता हूँ, इतनी हम्म। प्रैक्टिस होती नहीं है मेरी, मतलब इतना। प्रैक्टिस नहीं होती, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर तू कंटेस्ट से भी, काफ़ी लोगों की कंटेस्ट से प्रैक्टिस हो जाती, बट दैट इज़ द लॉन्गर जर्नी देन। बट लेट्स सी। तो व्हाट आर यू आइंग फॉर? अभी तू मतलब पीपल तो बन चुका है एक बार, राइट? हाँ, फिर तो प्यूपिल पीपल बन से नीचे चुका आ गया, हूँ, तो पर बेसिक भैया देख, एक चीज़ होती है दैट लेट्स से तू अगर ना, मतलब मान ले इस लेवल पे भी पहुंच जाता, मतलब तू प्यूपिल के काफ़ी ऊपर भी पहुंच जाता, 50% अब प्यूपिल हो जाता तू, मान ले, ठीक है। बट उसके बाद भी व्हाट आई एम एबल टू सी ओवर हियर इज दैट यू आर स्ट्रगलिंग इन दिस पर्टिकुलर रेंज। ग्रोथ है, देख, ग्रोथ तो डेफिनेटली है, इधर से तू इधर तक आया है तो ग्रोथ दिख रही है मुझे, बट यू काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग इन दिस पर्टिकुलर रेंज। ना देयर कुड बी 2 रीजंस फॉर इट, या फिर तेरे को प्रॉब्लम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या जैसे प्रॉब्लम हमेशा हो नहीं पा रही कंसिस्टेंटली, जैसे बी नहीं हो रही मतलब। भैया बी तो हो जाती है, सी तो हार्डली कभी हुई है, 2-3 बार हुई होगी। नहीं नहीं नहीं, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर जैसे बी टाइम पे हो जा रही है, राइट, टाइम पे नहीं होता है, बस एटलीस्ट वही प्रॉब्लम है 30 ना। तक, 30 तक हो जाता है, हाँ, 30, 35, 40 तक होता है। अगेन दिस इज योर प्रोफाइल, तो ये देखिए प्रॉब्लम है। देख, अभी तक मैंने जितनी प्रोफाइल देखी है ना, सब में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो जिस लेवल पे है, अगर वो उससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द थिंग इज दैट दे आर नॉट डूइंग इनफ प्रैक्टिस। सो द सेम केस इज विद यू। तो अभी 1100 पे है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1200 पे यार तू, ठीक है। तो 1200 पे होगा, देखो 1300-1400 ट्राई मारने चाहिए, और तूने ट्राई मारे हुए मैक्सिमम 1100-1200, तो तू इसी प्रोफाइल पे अटका, इसी लेवल पे अटका रहेगा ना फिर। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ भैया। अगर तू इसी के लिए तैयारी करता रहेगा तो तू उसी लेवल पे रहेगा, 6 का एग्जाम देता रहेगा बार बार, तो तू 7th की पढ़ाई नहीं कर सकता ना। आई होप दैट मेक सेंस, राइट? भैया एक बार लीड कोड की भी कर दो ना, अभी मतलब लीड कोड का भी थोड़े दिन पहले ही चालू किया है मैंने, एक बार मैं भेज देता हूँ। मतलब इसमें भी मैंने सिर्फ कॉन्टेस्ट ही दिए हैं, और कुछ इतना कुछ खास मेरे को। नहीं यार देख, कंटेस्ट देने से ये होता है कि जैसे अगर मेरे को ऑलरेडी मान ले सब कुछ पता है, ठीक है, मेरे को सारे कंसेप्ट आते हैं, देन आई एम ओनली गिविंग कंटेस्ट, देन दैट मेक सेंस, बिकॉज मेरे को सिर्फ टेस्ट करते हैं अपनी स्किल्स को बार बार। अगर तुझे ऑलरेडी सारे कंटेस्ट नहीं, कंसेप्ट नहीं आते, देन इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ताकि तेरे कंसेप्ट क्लैरिटी आए, देन यू एबल टू एनालाइज। तो ओके भैया अभी भैया। मैं कौन से मतलब कुछ ऐसे कोई आइडिया दूँ ना कि क्या टॉपिक पढूं, किस रेटिंग के करूँ। जैसे कोड फोर्सेस में तो 1300 और 1400 करना है, मेरे को वो समझ आ गया। पर इसमें अभी मैंने इतना लीड कोड किया नहीं है, मेरे को यार देख, इतना इसमें ना पता एक नहीं ट्रिक चला कि होती है। क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इसमें एक ट्रिक होती है, देख मैं भी सर्च नहीं कर सकता, मैं करूँगा तो इसमें स्ट्राइक लग जाएगी बेकार की, बिकॉज मेरे पास प्रीमियम है तो वो कंपनी नेम वगैरह दिखते हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट गोना गो टू द प्रॉब्लम्स इटसेल्फ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट तू कोई भी एक प्रॉब्लम उठा, ठीक है, तो उसको सॉल्व करेगा ना, उसके नीचे उसके वो आते हैं, सजेशंस आते हैं। मान ले तूने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की मीडियम लेवल की, ठीक है, मान ले तूने कोई बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम सॉल्व की मीडियम लेवल की, उसके नीचे सजेशंस आएंगे जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे वुड बी एक्चुअली रिलेटेड टू बाइनरी सर्च इटसेल्फ, ठीक है। मतलब उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है ना, तूने बाइनरी सर्च की तो बाइनरी सर्च के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, उसमें हार्ड प्रॉब्लम उठा ले। तो द बेनिफिट ऑफ डूइंग दैट वुड बी कि तूने, तेरे को पता है इसमें बाइनरी सर्च ही लगना है, बट दैट प्रॉब्लम इज अ बिट हार्ड हो, तो वो कंसेप्ट तेरा ढंग से बन पाएगा। उसके बाद यू विल गेट टू अ सिनेरियो कि देखो लगे कि बाइनरी सर्च पे तो हाँ ठीक बैठ गया मेरा, अब मुझे कुछ और करना है, मान ले मेरे को डीपी करना है अब, ठीक है। तो इन दैट केस फिर टैग्स पे जा, टैग्स में डीपी सेलेक्ट कर ले जाके, तो बता सकता हूँ। रुको, इधर आ गया, टैग्स पे गए, टैग्स में तो सेलेक्ट कर दे, को क्या करना है, मेरे को ग्रीडी करना है, मेरे को डीपी करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैंने को बाइनरी सर्च ही करना है, मैं बाइनरी सर्च सेलेक्ट कर लिया। बाइनरी सर्च की बहुत बातें हो गई, कुछ और सेलेक्ट करते हैं। मान लिया कोई डीएफएस की प्रॉब्लम्स करनी है, मैं डीएफएस सर्च करूँगा, ठीक है, इधर से प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लूँगा मेरे को कौन सी करनी है। समझ रहा बात? हाँ भैया। बस यही करना है यार। तो मोस्टली मैं मतलब थोड़ी हार्ड हार्ड ट्राई करूँ, हार्ड और मीडियम। या देखा, अगर कंफर्टेबल है ना तो मीडियम के साथ, तो स्टार्ट तो हाँ मीडियम से करो, ऑब्वियसली हो सकता है जैसे मीडियम भी नहीं हो रही, इन दैट केस तो कोई ईजी करनी पड़ेंगी पहले, ठीक है। बट अगर तो मीडियम के साथ कंफर्टेबल है ना, देन गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, स्टार्ट डूइंग हार्ड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ऑब्वियसली देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग हार्ड प्रॉब्लम्स, अगर तुमसे मीडियम ही नहीं हो रही तो हार्ड तो क्या ही होंगी फिर। तो भैया गेट मैं टू मतलब नो अबाउट। हाँ
वो कोड शेप पे भी बहुत दिन से दे रहा हूँ, मतलब मैंने एटलीस्ट 50-45 कॉन्टेस्ट दे दिए, तो भी मेरी सिर्फ अभी भी मैं 3 स्टार ही हूँ, बस 1700 रेटिंग रही है। भाई तू वही है बट ना, तो टाइम वो नहीं कर रहा ना, जैसे देखो कोड फोर्सेस बता दिया, कोड फोर्सेस पे ये चीज़ दिख जाती है आराम से, तो इसलिए कोड फोर्सेस इज गुड दैट आई एम एबल टू सी कि तू प्रैक्टिस ही गलत क्वेश्चन की कर रहा है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके इस लेवल पे नहीं पहुंच सकता ना, समझ रहा है ना बात? भाई हाँ हाँ 1300, और मतलब सी सी ट्राई करने के लिए 1300 और 1400 अच्छा रहता है मतलब। या देख 1300 1400 आई नॉट सी से कि सी हो जाएगा इनसे, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये लेवल करके एटलीस्ट यू विल बी एबल टू बिल्ड अप सम स्किल्स इन योर सेल्फ, ठीक है? और जब तू ये करेगा बार बार, ठीक है, और उसके बाद तो कंटेस्ट भी देता रहेगा, अब तू कंटेस्ट बार बार देगा तो उसमें तेरा बी तो ऑटोमेटिकली तू कर रहा होगा, ठीक है, हाँ एटलीस्ट ट्राई कर रहा होगा, तो एक बार एक टाइम के बाद काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो जल्दी करने लग जाएगा बी भी, उसकी वजह से एक तो रेटिंग को बूस्ट मिलेगा, राइट? उसके बाद हाँ ये लेवल करेगा तभी तो आगे जा पाएगा, अगर तू 1300 1400 करेगा देन ओनली यूल बी एबल टू गो टू 1500 1600 लेवल, राइट? समझ रहा है? तो ग्रोथ तो ऐसे ही होनी है, तो यू कांट फिक्सेट ऑन दिस। सो मैं तेरे को बोलूँ कि नहीं भाई 1300 से ज़्यादा सी सॉल्व हो जाएगा, और सी प्रॉब्लम आए ना, मान ले सी प्रॉब्लम सारी 1600 की आ जाए, फिर तो बोलेगा भाई आपने तो बोला था पर हुआ नहीं ऐसा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि तेरे को 200 प्लस लेवल पे करना है सॉल्व अभी, ठीक है? समझ रहा है बात? हाँ भैया। कूल ब्रो। और कुछ? Guys, anyone else? हाँ, ये सेशन डेली चलाते हैं क्या आप? या ग्रुप बाई सेशन डेली नहीं होता ये, आई ट्राई टू कीप इट वीकली और बाई वीकली, ठीक है? ओके। कोई डाउट था आपको? तो ये नोटिफिकेशन लाइक अगर ये शेड्यूल्ड था क्या? ये अगर होता है तो बता देते आप। हाँ मैं पहले बता देता हूँ, मतलब 1-2 दिन पहले बता देता हूँ एटलीस्ट, ठीक है? ओके ओके या ओके। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं अभी नहीं। लाइक इतने सारे प्रोफाइल रिव्यूज आ गए तो मेरे को पता चलेगा कि लाइक मेरे को कहाँ पे वर्क करनी चाहिए। Oh, that's great. या Cool guys, thanks a lot for this, for like being in this session. I hope your doubts were resolved. Agar if there's something that's still not resolved, you can always ping me on Discord itself. Cool guys, bye bye. Thanks a lot. थैंक्स प्रणव। Thanks bro.